Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this second day of series where we are going to discuss today on the important topic audit report, new audit report for NPO sector and ITR 7. As we all know, there are so many changes in this audit report and ITR 7. So, on demand of many members, we have planned this again a virtual program. Still, many members have not joined after registration. They will join us later. In the meantime, I welcome Ved Mittalji on this platform once again. Thank you, sir, for giving once again time to address the member at last. About Ved, sir, I would like to brief. He is a practicing member and doing practice since last 25 years. He has passed his graduation from AMU Aligarh. He is the guest faculty of certification course of NPU by ICI. He has also passed FAFD independent directors from IICA. He is practicing at Preet Vyar, New Delhi. Today's coverage is detailed coverage about the various intricacies in the filing of ITR 7 and new audit report 10B requirements. So if you have any doubt regarding this topic, you can post in the chat box later on after deliberation by the Vaser. So welcome to each participant once again. I request Vaser to start the session. सर लार्ज कर दीजिए. हाँ, स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आ रही है बट लार्ज नहीं है. हाँ. Yes. Now okay. Thank you, Sumit ji. Thank you all office bearer of the CASA given this opportunity on this webinar on the topic of what is the change in ITR 7 and also what is the change in audit report of form number 10B and 10BB. And also one of the topic of what is the latest development in NPO sector, particular point of view of the Income Tax Act. So before the starting of the our topic of change in audit report, we are preferably some latest one of the notification issued by the what happened? सर शेयर पीपीटी द्वारा कीजिए. हाँ वही कर रहा हूँ, शेयर तो कर रहा हूँ, ये अलग कहाँ से. It's clear now? Yes, sir. Recently, government had issued a notification, you can say circular number 6 for the in 24th May 2023. Basically, circular ko issue होने से पहले there is a lot of problem issued faced by us in particular in NPO. As you know, that the new registration process has been imposed by the income tax in the last year. All the existing
NPOs which having the registration 12AA, 80G, Section 35 and 1023C has to required to renewal their registration to filing the form number 10A up to the 31 March 2022 and moreover for the 25 days from 1st November to 25th November again window has been open. लेकिन इसके बाद भी कई एनपीओ ऐसे थे जिन्होंने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल नहीं कराया था, मींस इन्होंने अपना फॉर्म नंबर 10A नहीं फाइल किया था फॉर द रिन्यूअल एज पर न्यू सेक्शन 12AB। अब बजट 2023 में एक चेंजेस आया था कि जिन असेसी ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कराए हैं उनके ऊपर 115 TD सेक्शन लग जाएगा। 115 TD का मतलब है एक्रेडिटेड इनकम, मींस एज पर योर बैलेंस शीट वॉट एवर द असेट लाइंग इन द बैलेंस शीट द मार्केट रेट माइनस लाइबिलिटीज मींस करंट लाइबिलिटी वॉट एवर द सरप्लस इज अवेलेबल टू बी टैक्सेस एट द रेट ऑफ 30%, मींस एक्रेडिटेड इनकम का प्रोविजन आ गया था। तो ये बड़ा हार्डशिप था क्योंकि काफी ऐसे एनपीओ थे जिन्होंने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, तो ये बजट पास होने के बाद उनको काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो पहला तो ये इशू था। दूसरा इशू था कि जिन असेसी ने अपने फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दिए थे, फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दिए थे फॉर द कन्वर्ट टू प्रोविजन टू रेगुलर, रेगुलर मींस फॉर 5 ईयर। उसमें लॉ में ये इशू था कि यदि आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट है या स्टार्ट हो गई है तो उसके विद इन 6 मंथ एट द डेट फ्रॉम द प्रोविजनल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विद इन 6 मंथ आपको फॉर्म नंबर 10AB फाइल करने थे। लेकिन कुछ असेसी ने अपने जो फाइल किए थे फॉर्म 10AB वो 6 महीने के बाद किए थे। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि CIT एग्जम्पशन ने लगभग सभी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे। अगेन लॉ में भी ये था, बजट में भी, जिन असेसी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं या जिन असेसी ने टाइम से अपना फॉर्म नंबर 10AB नहीं फाइल किया हुआ है उन पर भी 115 TD लगने की स्थिति आ गई थी। तो ये दो बड़े हार्डशिप प्रोविजन थे 115 TD के। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में ये था कि एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर 10A एंड फॉर्म नंबर 10AB एक्सटेंडेड टू 30/9/2023, मींस जिन असेसी ने अभी तक अपने रिन्यूअल नहीं कराए हैं उनके लिए, या जिन्होंने फॉर्म नंबर 10AB अभी तक नहीं फाइल किए हैं, या जिन असेसी ने फॉर्म नंबर 10AB फाइल किए थे उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं। तो इन तीनों स्थिति में हम फॉर्म नंबर 10A 30/9/2023 तक फाइल कर सकते हैं और फॉर्म नंबर 10AB दोबारा हम फाइल कर सकते हैं 30/9/2023। ये बड़े दो अच्छे प्रोविजन थे। अगर जिन असेसी ने अपने 30/9/2023 तक अपने फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दिए या फॉर्म नंबर 10A फाइल कर दिए, उन असेसी पर 115 TD नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन असेसी को 30/9/2023 के बाद भी इन्होंने रिन्यूअल नहीं फाइल किया या फॉर्म नंबर 10AB नहीं फाइल किया एज पर द रिक्वायरमेंट, क्या उन पर 115 TD लगेगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये स्पेशल विंडो खुली है। एक आपकी ये कह सकते हैं एमनेस्टी स्कीम है कि जो असेसी ने अभी तक नहीं फाइल किए वो कृपया 30/9/2023 तक, यदि फॉर्म नंबर 10A नहीं फाइल किया हुआ है तो फॉर्म 10A फाइल कर दें, या फॉर्म नंबर 10AB एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं फाइल किया हुआ है तो भी फाइल कर दें, तो उनको 115 TD से बच जाएंगे। ये चेंजेस। दूसरा ये था कि जो फॉर्म नंबर 10AB ऑलरेडी फाइल्ड हैं और CIT एग्जम्पशन के बाद में वो पेंडिंग्स हैं, उनको भी बाय डिफॉल्ट कंडोन मिल जाएगा। कंडोन का मतलब यदि उन्होंने 6 महीने के बाद फाइल किए हैं, CIT एग्जम्पशन में अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो CIT एग्जम्पशन उनको कंडोन मानते हुए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देंगे। 115। अच्छा, नेक्स्ट था 10BE जिसकी डेट पहले 31 मई थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 30/6/2023 कर दिया था। एक ये चेंजेस था। और एक ये चेंजेस था कि फॉर्म नंबर 10 और 9A बजट में इसकी डेट पहले 31 अगस्त कर दी गई थी। बजट 2023 में फाइलिंग ऑफ द फॉर्म नंबर 10 और 9A की डेट इन्होंने 31 अगस्त कर दी थी,
अब इस नोटिफिकेशन के आधार पर, सर्कुलर के आधार पर इसकी डेट पुनः बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। अब क्या है कि मुझे जो ऑडिट फाइल करनी है फॉर्म 10B और 10BB में, उसकी डेट है 30 सितंबर। रिटर्न जो मुझे आइटर 7 फाइल करनी है उसकी डेट है 31 अक्टूबर, और उसके साथ साथ फॉर्म नंबर 10 और 9A की डेट भी अब 31 अक्टूबर 2023 है फॉर द कंसर्न असेसमेंट ईयर। तो ये तो बेसिकली चेंज है जो सर्कुलर के हिसाब से चेंज हुए हैं। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम नया जो असेसमेंट जो फॉर्म नंबर 10B है उस पर वी मूव टू। किसी का कोई क्वेश्चन है सुमित जी इस मैटर्स पे? अभी सर इस रजिस्ट्रेशन मैटर पे प्रोसेस नहीं है में अभी कोई, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। जी। अब आते हैं फॉर्म, जो अपना ऑडिट का फॉर्म है। मैं पहले की बात करता हूँ, मार्च 22 तक क्या था कि दो फॉर्म होते थे, फॉर्म नंबर 10B और फॉर्म नंबर 10BB। फॉर्म 10B फाइल होता था मेरे पास में, यदि 12AA का रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए 10B होता था, और मेरे पास में 1023C 4, 5, 6 और 6A का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल है तो उसमें फाइल होता था फॉर्म नंबर 10BB। अब दोनों की सिचुएशन को इन्होंने चेंज कर दिया है। मींस अब जो फॉर्म नंबर 10B फाइल होगा वो उन असेसी के लिए होगा टोटल इनकम विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 एक्सीड 5 करोड़। जिन असेसी की एनपीओ की टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो 12AA में रजिस्टर्ड है, चाहे वो 1023C 4, 5, 6, 6A में रजिस्टर्ड है, दोनों के लिए आपको फॉर्म नंबर 10B ही फाइल करना है। और रिसीव एनी अमाउंट ऑफ FCRA, चाहे वो 12AA में रजिस्टर्ड है, चाहे वो 1023C में रजिस्टर्ड है, यदि एक एनपीओ ने एनी अमाउंट ऑफ FCRA लिया हुआ है तो उस केस में भी आपको फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है। नेक्स्ट, अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर आपने सिंगल पैसे भी खर्च किया है, चाहे विद परमिशन फ्रॉम CBDT और विदाउट परमिशन ऑफ CBDT, बोथ सिचुएशन, इन 4 सिचुएशन you have to file फॉर्म नंबर 10B। पहली सिचुएशन अगेन, यदि आपका 5 करोड़ से ज्यादा का इनकम है, चाहे आपके पास में 12AA है या 1023C है, आपने एनी मनी, एनी सिंगल पैसे भी आपने FCRA से आपने रिसीव किया हुआ है, या एनी सिंगल पैसा आपने इंडिया के बाहर खर्च किया हुआ है, तो इन सारों सिचुएशंस में आपको फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है। और अब आता है 10BB किस केस में फाइल करना है? जिन असेसी, चाहे वो 12AA में रजिस्टर्ड है और 1023C में रजिस्टर्ड है, जिनका टोटल इनकम 5 करोड़ से कम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास में वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन सबूत 2 करोड़ रुपए है और मेरा कॉर्पस कंट्रीब्यूशन 4 करोड़ रुपए है, तो इस केस में कॉर्पस मींस इज द पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी हुई? 6 करोड़ की। तो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 10B। अब 10B अब इन्होंने काफी एनलार्ज कर दिया, लगभग 26 to 27 पेज का कर दिया है, और उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन तो आइटर 7 में भी है और फॉर्म नंबर 10B में भी है, तो काफी एनलार्ज कर दिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फॉर्म नंबर 10B में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फाइल करनी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन मीन्स डिटेल ऑफ द ऑडिटरी मीन्स असेसी। पैन नंबर उसका क्या है, उसका नाम क्या है, उसका असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर एड्रेस। अगर एक एनपीओ जो अपना स्कूल चलाता है, स्कूल का एड्रेस अलग है, बुक्स ऑफ अकाउंट उसने कहीं और रखे हुए हैं, या कुछ उसका एडमिन ऑफिस है, तो सारे ऑफिसर्स की जो रजिस्टर्ड ऑफिस मींस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इसके अलावा और भी कोई एड्रेस है तो आपको सारे एड्रेस यहाँ उसको फिल करने हैं। टाइप ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी है या दर्ज है तो आपको टिक करना है। ऑडिटी एस्टेब्लिश अंडर ए इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट मींस ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड हो गया, सोसाइटी के केस में वाइलर्स हो गए, कंपनी के केस में MOA हो गया, तो डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट होता ही है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आती है रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन डिटेल मींस आपका जो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल हमें फॉर्म नंबर 10AC से मिल जाएगी, क्योंकि आई होप सभी के ने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया होगा, फॉर्म नंबर 10AC आया होगा,
उस 10AC में यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गया। किस सेक्शंस में आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, इनकम टैक्स में 12AA है, 1023C है, 4566 है, ये सारे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, ये भी हमें फॉर्म नंबर 10AC में लिखे हुए हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये डेट हमें अभी फॉर्म नंबर 10AC में लिखा हुआ किस डेट में है। रजिस्ट्रेशन नंबर URN, ये 16 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा टॉप पर। अथॉरिटी किसने दिया हुआ है, CIT एग्जम्पशन, और डेट इन विच द रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव। अब डेट इसमें आती है सपोज, क्योंकि डेट का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। तो यदि मैंने सपोज मैंने अप्लाई किया हुआ है असेसमेंट ईयर 2021 या 21-22 के लिए, 22-23 के लिए, तो जो मेरी स्टार्टिंग डेट होगी, डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग, जैसे 1/4/2022, 1/4/2021, जिस डेट से इफेक्टिव है वो डेट अपनी यहाँ पर आ जाएगी। डिटेल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी के केस में हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सोसाइटी के केस में हो गया गवर्निंग बॉडी, और ट्रस्ट के केस में हो गया बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। उन सब की डिटेल आपको यहाँ डालनी है, कौन कौन है, नाम क्या है, इनका क्या रिलेशन है, रिलेशन में ऑथर है, सेटर है, ट्रस्टी है, मेंबर ऑफ सोसाइटी है, गवर्निंग काउंसिल मेंबर है, या अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 5% से ज्यादा जिसकी होल्डिंग है उनके नाम डालने हैं। परसेंटेज हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मींस आधार या पैन का नंबर, और अदर आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा भी कुछ और आइडेंटिफिकेशन है। लॉ में इन्होंने 8 चीजें दी हैं, 8 में से कोई चीज डाल सकते हैं आप। वेदर देयर इज एनी चेंज इन रिलेशन ड्यूरिंग द ईयर, अगर ड्यूरिंग द ईयर में कोई ट्रस्टी ऑफिस बियरर यदि चेंज हुए हैं तो उनकी भी डिटेल आपको डालनी है। 5% से ज्यादा होल्डिंग का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। अब आ गया नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मींस आपका जो, जब आपने फॉर्म नंबर 10 फाइल किया हुआ तो ऑब्जेक्टिव आपके होंगे, आपका रिलीफ ऑफ पुअर है, एजुकेशन है, मेडिकल है, तो जो भी होगा आपका ऑब्जेक्टिव एज पर द योर बायलॉज आपको टिक करने हैं। यदि ड्यूरिंग द ईयर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है टच डीड में, और अगर हुआ है तो किस डेट में हुआ है, क्योंकि लॉ के हिसाब से यदि आपने टच डीड में कोई मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंज इन ऑब्जेक्टिव। अगर डे टू डे एफर्ट्स में आपने डायरेक्टर या शेयर होल्डर या सॉरी अपने ट्रस्टी या ऑफिस बियर चेंज हुए हैं तो वो मॉडिफिकेशन नहीं कहलाता है। यह मॉडिफिकेशन का मतलब है आपने टच डीड में ऑब्जेक्टिव क्लॉज में कोई चेंज किया हुआ है। तो लॉ के हिसाब से यदि आपने कोई चेंजेस किया हुआ है तो विद इन 30 days यू हैव टू अप्लाई वंस अगेन इन फॉर्म नंबर 10AB टू द डिपार्टमेंट। तो इसमें इन्होंने डेट भी ले ली, आपने इन्फॉर्म किया है या नहीं किया। कमिटमेंट ऑफ एक्टिविटी, कमिटमेंट ऑफ एक्टिविटी से यहाँ मतलब है यदि आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया है और आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के केस में ये डिटेल आपकी फाइल होगी, क्योंकि अब आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस आपने फॉर्म 10AB फाइल कर दिया है, अभी तक आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो उस डेट में उस केस में ये डिटेल आपको फाइल करनी है। डेट ऑफ एप्लीकेशन, स्टेटस अभी क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी डिटेल आपको फाइल करनी है। इट इज जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है फॉर फॉर्म 10AB की आएंगी। अब ये बहुत बड़ा चेंजेस है कि अभी सितंबर 2022 में इन्होंने चेंज किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स बनाए थे कि एक एनपीओ को कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने हैं। और उन जैसे हम टैक्स ऑडिट में देखते हैं, टैक्स ऑडिट में भी हम सर्टिफाई करते हैं कि एसएससी हैज मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दिस बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो सेम सिनेरियो हमें यहाँ भी भरना है। Confirm yes, there is a whether books of account has been maintained as per the rule 17AA. Provide the detail, cash book, ledger, copy of bill, original, all project income expenditure, voluntary contribution, ये सब requirement है as per law. Maintained by the auditor computer system or not at registered office. Detail of register date, decision date, information entry if books of account maintain any other place by the registered office. लॉ के हिसाब से यदि आप अदर प्लेस पे करना चाहते हैं मेंटेन तो आपको असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 days। तो वो भी आपकी डिटेल्स आ गई कि आपने असेसिंग अगर अदर प्लेस पर आप मेंटेन कर रहे हैं अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज ऑडिटेड, आपने ऑडिटेड किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, ये भी आपको यस और नो में लिखना है। एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी,
ये एक सिचुएशंस आती है कि क्योंकि मेरे यदि ऑब्जेक्टिव 6 लिम में जैसे 7th लिम होते हैं, एजुकेशन, मेडिकल और योगा, ये सारी चीजें, यदि आपका एडवांसमेंट और जनरल पब्लिक यूटिलिटी है और आपकी एक्टिविटीज बिजनेस स्टेट पर है तो आपको यस और नो करेंगे। और परसेंटेज ऑफ रिसीप्ट एज पर लॉ सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 का प्रोविजो 2, यदि आपकी 20% से ज्यादा आपकी बिजनेस रिसीप्ट है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल। तो उन्होंने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी ऑडिटर से, क्या ये इनका एनपीओ कंटिन्यू एज पर चैरिटेबल एक्टिविटी है या कोई वायलेशन ऑफ द प्रोविजो 2 का कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे। जैसे यहाँ परसेंटेज 20% से ज्यादा होगी, डेफिनेटली assessee is not following the as per the proviso of 2nd of subsection 215। तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि यदि कोई एनपीओ ट्रेड कॉमर्स एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी परसेंटेज रिसीप्ट कितनी है। बिजनेस अंडरटेकिंग सेक्शन 11(4) और 11(4)(a). 11(4) होता है बिजनेस अंडरटेकिंग, यदि कोई एनपीओ एक्चुअल में कोई बिजनेस कर रहा है जो इंसिडेंटल नहीं है तो उसकी डिटेल आती है 11(4) में, और यदि कोई इंसिडेंटल बिजनेस कर रहा है तो वो डिटेल होती है 11(4)(a) में। यहाँ कर रहा है 11(4), नेचर क्या है, बिजनेस कोड क्या है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एज पर द लॉ। इन इंडस्ट्रियल बिजनेस अंडरटेकिंग के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट हैज टू बी मेंटेन। आपने बुक किए नहीं किए, और यदि उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उसकी भी अलग से आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। तो whether the separate books of account with the tax audit report under section 44AB if applicable has been maintained, yes or no. Information from the business undertaking not to be included in the total income, income from the business undertaking including the total income। तो ये सिचुएशंस होती है कि टोटल इनकम में है लिया है या आपने नहीं लिया, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको 11(4) की देनी है। अब आता है 11(4)(a), इंसिडेंटल बिजनेस। इंसिडेंटल का बिजनेस, सपोज एग्जाम्पल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसने अपनी दुकान खोली हुई है, उस दुकान पर वो स्टेशनरी भी बेचता है, बुक्स भी बेचते हैं, अपनी ड्रेसेस भी, स्कूल यूनिफॉर्म भी बेचते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी लॉ में अलाउड है, लेकिन ये सब कहलाएंगी इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। तो लॉ के हिसाब से इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको सेपरेट मेंटेन करनी है। अगेन, whether the auditor has any income during the as per the PGBP, if yes, provide the detail, nature of business, business code, whether separate books of account maintained, whether business is incidental to attainment objective of the auditee, profit and gain of the business during the previous। तो ये आपको डिटेल उनकी देनी है। अब एक आता है टीडीएस ऑन रिसीप्ट ऑफ इनकम। कुछ एनपीओ ऐसे हैं जिनकी इनकम पे टीडीएस कटता है। सपोज कोई प्रोफेशनल इनकम है, किसी ने सीएसआर लिया है तो सीएसआर पे भी उन्होंने टीडीएस काट लिया। तो यदि आपकी इनकम पर किसी भी तरह का टीडीएस कट रहा है तो उस पूरे टीडीएस की आपको डिटेल देनी है पूरे, ऐसे मींस डिडक्टर वाइज। तो नेम ऑफ द डिडक्टर क्या है, उसका 10 नंबर क्या है, आपसे अमाउंट पे कितने अमाउंट पे टीडीएस कटा है, कितना टीडीएस का अमाउंट है, किस सेक्शंस में कटा है, आपकी जो इनकम आ रही है वो ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस की कैटेगरी तो नहीं है या कोई आपकी चैरिटेबल टाइप के, तो ये आपको प्रूफ करना है कि इन सब के लिए आपकी जो इनकम आ रही है वो किस नेचर की है, ट्रेड कॉमर्स नेचर की है या चैरिटेबल नेचर की है। ट्रेड कॉमर्स की है तो आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट हैज टू बी मेंटेन, जो मैंने अर्लियर 11(4)(a) में आपको बोला हुआ है। अब नेक्स्ट आता है कि रिकंसिलेशन बिटवीन फॉर्म नंबर 10BD और योर एज पर द शेड्यूल ऑफ बीसी। जैसा हम जानते हैं कि फॉर्म नंबर 10BD स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन, जो भी आपने डोनेशन रिसीव किया हुआ है आपको पूरी डिटेल फाइल करनी है, फॉर्म नंबर 10BD में है। और डोनेशन कौन कौन से हो गए, वॉलंटरी डोनेशन हो गया और कॉर्पस डोनेशन। किसी भी तरह का यदि एक एनजीओ ने रिसीव करा है उसकी पूरी डिटेल आपको फाइल करनी है। और कितने का आपने फॉर्म 10BD फाइल किया हुआ तो उसका पूरा रिकंसिलेशन है। वेदर द फॉर्म नंबर 10BD हैज बीन फाइल्ड, यस और नो, फाइल किया है ये, इफ यस द टोटल सम ऑफ डोनेशन रिपोर्टेड, आपने 10BD में कितने अमाउंट सम ऑफ रुपीस की टोटल वैल्यू लिखी है, तो इफ यस आप उसके सामने वैल्यू लिख दें।
अब आता है डोनेशन नॉट रिपोर्टेड इन फॉर्म नंबर 10BD। ये सबके साथ होता है। सपोज एग्जाम्पल, 1 करोड़ रुपए का डोनेशन आया और लगभग 100 लोगों ने मुझे डोनेशन दिया, तो एज पर द शेड्यूल BC जब हम आइटर 7 में करेंगे तो मैं इसमें 1 करोड़ लिखूंगा। लेकिन हो सकता है मैंने फॉर्म नंबर 10BD में केवल 60 लोगों की ही इंफॉर्मेशन दी है, बाकी 40 लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब उन 40 लोगों की जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसा हो सकता है, किसी ने कैश डोनेशन दिया है, किसी की मेरे पास में KYC नहीं है, किसी का मेरे पास में पैन नंबर नहीं है, किसी का मेरे पास में और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। इन सब का इन्होंने रिकंसिलेशन मांग लिया कि आपके पास में क्या क्या कमी है, कितने अमाउंट की कमी है, वो आप हमें पूरा बताएं। टोटल डोनेशन नॉट रिपोर्टेड इन फॉर्म नंबर 10BD। पहली सिचुएशन, डोनेशन रिसीव्ड अप्रूव 80G2B 80G24, डोनेशन क्वालिफाइड 80G5। जनरली जो प्राइवेट में जो डोनेशन होते हैं वो 80G5 में क्वालिफाई होते हैं। तो क्वालिफाई कितने हैं, कितने क्वालिफाई नहीं है? अगर किसी ने 2000 से ज्यादा का कैश में डोनेशन दिया हुआ है तो उस असेसी को 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले हम ये जनरल थी कि केवल 2000 तक का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। इट इज रॉन्ग। आपने यदि 2500 रुपए का भी डोनेशन दिया हुआ है तो आपको 80G का डिडक्शन 0 मिलेगा, 2000 नहीं मिलेगा। जो भी डोनेशन एक्सीड 2000 से ज्यादा है उसका कितना है? आपने एक NPO से दूसरे NPO को डोनेशन दिया हुआ है तो वो कितना है? क्योंकि एक NPO जब दूसरे NPO को डोनेशन देता है तो जो डोनेशन देता है उसको 80G का बेनिफिट नहीं मिलता। मींस जो डोनेशन लेता है उसको 80G का बेनिफिट नहीं मिलता, ये तो उसकी इनकम में आता है। तो यहाँ जो बात कर रहा है कि 80G5 में कौन कौन से डोनेशन क्वालिफाइड है, ये डोनेशन क्वालिफाइड नहीं है, इसका अमाउंट आ जाएगा। डोनेशन नॉट रिपोर्टेड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा किसी का पैन नंबर नहीं है, आपके पास में चेक से तो पेमेंट आया है लेकिन आपके पास में पैन नंबर नहीं है उसका, आपके पास में उसका आधार नहीं है, या जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्म नंबर 10BD में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिक्वायरमेंट है उसमें से किसी भी कॉलम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया डोनेशन इन काइंड, इसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है। अनोनिमस डोनेशन मींस आपके पास में देने वाले का कोई नाम पता कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के डोनेशन को अनोनिमस डोनेशन कहते हैं। मींस देयर इज नो KYC ऑफ द डोनर। तो हम जैसे देखते हैं 115 BBC में इसकी एक लिमिट है 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, इतना एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मींस वो अमाउंट वॉलंटरी डोनेशन कहलाता है। अमाउंट रिसीव बाय द रिलीजियस ट्रस्ट के केस में 115 BBC अनोनिमस डोनेशन ऑलरेडी फ्री होता है। फ्री से मतलब वो वॉलंटरी डोनेशन माना जाता है। और यदि चैरिटेबल ट्रस्ट का है, नेचर है उसका, और उसने एनिमस डोनेशन लिया हुआ है तो 5% और 1 लाख बेचा हायर की छूट है। बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है उस पर 30% का टैक्स लग सकता है। तो ये उन्होंने 30% का लगा लिया। एनी अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द 10BD, आपको ऐसा लगता है जो ऊपर नहीं आया यहाँ आपको दिखाना, तो आप यहाँ अमाउंट आ जाए। तो टोटल डोनेशन नॉट रिपोर्टेड इन फॉर्म नंबर 10BD, कितना नहीं है, कितना आपने लिया है, इन सब का टोटल आपका शेड्यूल BC से मैच कर जाएगा। टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू बी मैच विद द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। शेड्यूल BC में इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट मैच कर जाएगा। इसमें FCRA का आ गया और FCRA के बाद में आपका कॉर्पस भी आ गया। मीन जो शेड्यूल BC एज पर द इनकम टैक्स ITR है वो आपका पूरा मैच कर गया। क्योंकि शेड्यूल BC में दोनों तरह के डोनेशन आते हैं, कॉर्पस डोनेशन भी होता है और वॉलंटरी डोनेशन होता है। तो पहले तो इन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर में जो वॉलंटरी डोनेशन है उससे मैच कर लिया, फिर कॉर्पस डोनेशन और FCR इंक्लूड करके आपने पूरा शेड्यूल BC से मैच करा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन आपने वॉलंटरी डोनेशन की जो आपको फॉर्म नंबर 10BD में देनी थी आपने नहीं दी, या आपके पास में उसके KYC नहीं है, तो यहाँ में कौन लेनी है? क्या वो डिडक्शन अनोनिमस तो नहीं है? क्योंकि अनोनिमस पर 30% का टैक्स लगेगा। तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि आपके सारे डोनेशन जितने भी हैं आपको चेक करने हैं, क्या वो अनोनिमस है या वॉलंटरी है या कॉर्पस है। कॉर्पस है तो कॉर्पस में जाएंगे, वॉलंटरी तो वॉलंटरी में जाएंगे, अनोनिमस है तो अनोनिमस में, क्योंकि तीनों का नेचर अलग है। कॉर्पस का मतलब है योर कैपिटल रिसीव,
वॉलेंटियर का मतलब है आपकी वॉलेंटरी का मतलब है आपका रेवेन्यू रिसीव, और अनोनिमस का मतलब है 30% का टैक्स। तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि इन सब के डोनेशन को चेक करते हुए और जहां रिलेवेंट फिट बैठते हैं वहीं आप इंफॉर्मेशन शो करें। अब आता है नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब इसमें एक नए उन्होंने कह दिया कि जो आपने खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड किया है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे आपकी रेवेन्यू नेचर की है, आपको दो भाग में डिवाइड है, कैश और नॉन कैश। कैश में कितना पेमेंट करा है, नॉन कैश में कितना करा है। नॉन कैश का मतलब है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और बैंकिंग चैनल। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड और बैंकिंग चैनल को कर दिया इलेक्ट्रॉनिक, और नॉन इलेक्ट्रिक का मतलब है कैश। आपके नेचर के हिसाब से जो आपने खर्चा किया हुआ है एक्टिविटी के हिसाब से, वो आपको दो भाग में दिखाना है, कितना आपने बैंकिंग चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया है, कितना आपने कैश से किया। इन दोनों की डिटेल करके टोटल अमाउंट ये आपका शेड्यूल से मिलना चाहिए कि आपने कितना एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अब आता है कि आपने अगर किसी को 50 लाख से ज्यादा यदि आपने कोई पेमेंट करा है तो उसकी अपनी डिटेल ये है। दूसरा इन्होंने एक चीज लास्ट ईयर के बजट में भी कर दिया था 2022 में, कि जो भी खर्चा होगा वो आपको पेड बेसिस पे उसका एप्लीकेशन ऑफ फंड मिलेगा। आपने यदि एंट्री डाल दी कि अमाउंट पेबल की, एक्रूड कर दी, अमाउंट पेबल हम बाद में पे कर देंगे, उसका खर्चा आपको, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का। मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब है वो पेमेंट आप कर चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग चैनल हो चाहे वो कैश हो। आपको बेनिफिट तभी मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड तभी माना जाएगा जब आपने पैसा पेड कर दिया है। पहले ये आपने इनकम एक्सपेंडिचर दोनों पे मिलता था, मींस एक्सपेंडिचर मींस आपने बुक्स में दिखा दिया, चाहे आपने पेड किया हो चाहे ना किया हो, या बाद में आप पेड कर रहे हैं तो भी करंट ईयर में आपको बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। जो पेमेंट आपने कर दिया है उसी का पेमेंट मिलेगा, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टैंडिंग हो रहा है अमाउंट पेबल या सन्डी क्रेडिटर में, उस अमाउंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का। अब आता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउड होंगे। लॉ में दिया हुआ है, यदि आपने टीडीएस नहीं काटा है, आपने यदि टीडीएस नहीं काटा है तो आपको जिस अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा हुआ है वो आपका अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। जैसे हम जनरल वे में टैक्स ऑडिट में करते हैं, वो सेम प्रोविजन है। आपने कैश में पेमेंट किया है 10,000 से ज्यादा एज पर रूल 6D डबल डी, तो वो सेम नेचर यही है कि आपने किया है तो वो पैसा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड से कम हो जाएगा। कॉर्पस डोनेशन टू अदर इंस्टीट्यूट, जैसे हम जानते हैं कि करंट ईयर की इनकम से एक एनपीओ दूसरे एनपीओ को वॉलंटरी डोनेशन दे सकता है, लेकिन उसने कॉर्पस डोनेशन दिया हुआ है तो वो आपका डोनेशन एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। डोनेशन मेड टू अदर इंस्टीट्यूट नॉट हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, एक एनपीओ का ऑब्जेक्टिव है रिलीफ ऑफ पुअर या एजुकेशन, दूसरे एनपीओ का है मेडिकल। यदि एक ने दूसरे को डोनेशन दिया है, चाहे वो वॉलेंटरी हो चाहे वो कॉर्पस हो, इन दोनों केसों में भी आपका एक्सपेंडिचर मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। मींस यदि एक एनपीओ दूसरे एनपीओ को करंट ईयर से वॉलेंटरी डोनेशन देता है तो उसमें देखना पड़ता है कि दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम हो। यदि सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। डोनेशन टू एनी पर्सन रजिस्टर्ड नॉट और अप्रूव्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अब इन्होंने ये भी कह दिया कि आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब यदि किसी अनरजिस्टर्ड जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है या इनकम टैक्स में उसका अप्रूवल नहीं है, आप डोनेशन देते हैं डायरेक्टली, तो वो भी आपका अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया विदाउट अप्रूवल, जैसे हम जानते हैं यदि अब इंडिया के बाहर हमें पैसा खर्च करना है तो हमें उसकी सीबीडीटी से परमिशन लेनी पड़ती है। यदि आपने विदाउट परमिशन कोई भी पैसा खर्च किया है तो वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया विद अप्रूवल,
यदि आपने अप्रूवल भी ले लिया और आपका अप्रूवल में क्वांटम डिसाइडेड होता है, उस क्वांटम के बाहर आपने खर्च किया हुआ है, इन दिस सिचुएशन आल्सो क्वांटम के ज्यादा आपने जो खर्च किया हुआ है, जो एक्सेस अमाउंट है, वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है अप्लाइड एनी पर्पस बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज में सपोज रिलीफ ऑफ पुअर एजुकेशन है और आपने इसके अलावा कोई और पैसा खर्च कर दिया एज ए चैरिटेबल नेचर का, तो वो अमाउंट भी आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। मींस अदर देन योर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अलावा आपने किसी और पर्पस के लिए पैसा खर्च किया है तो उस अमाउंट को भी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। इन सबका टोटल हो गया। नेक्स्ट आगे अमाउंट डीम टू बी अप्लाइड अंडर सेक्शन क्लॉज 11(1) क्लॉज टू 9A। फॉर्म नंबर 9A की बात कर रहा है कि आपने 9A में कितना अमाउंट आपने एप्लीकेशन डीम्ड माना है। या फॉर्म नंबर 10 एक्यूमुलेशन करने के बाद में 15% का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के बाद मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन के बाद में आपका अमाउंट डिसअलाउ हो गया, डिसअलाउ के बाद में आपका डीम्ड एप्लीकेशन हो गया, फिर आपका 15% का आपका सेट अपार्ट रह गया। इसके बाद यदि कोई पैसा बचता है तो उस पूरे पैसे पर 30% का टैक्स लग जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन हमें ऑडिट रिपोर्ट में करना है। अब ये कुछ ऐसे हैं जिसमें 115 BVI सेक्शन है जिसमें 30% का स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स इन्होंने अब लगा दिया है। पहला डीम्ड इनकम एज पर द 11(1)B, जिसका हमने फॉर्म नंबर 9A फाइल किया था। स्टिपुलेटेड टाइम में वो पैसा खर्च नहीं हुआ जो अनस्पेंड मनी है, एज पर द फॉर्म नंबर 9A, उस अनस्पेंड मनी पर 30% का टैक्स लग जाएगा एज पर सेक्शन 11(1)B। दूसरा आता है डीम्ड इनकम एज पर 11(3). 11(3) का मतलब है 5 साल के लिए मैंने फॉर्म नंबर 10 फाइल किया, 5 साल के लिए एक्यूमुलेट किया, 5वें साल तक पैसा खर्च नहीं हुआ, तो रिमेनिंग जो पैसा 5वें साल में बच रहा है उस अमाउंट पर भी 30% का टैक्स लग जाएगा। इनकम एक्यूमुलेटेड अदर देन चैरिटेबल ऑफ और रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल जो आपका बाई लॉ है या जो आपका टच डीड में जो आपके ऑब्जेक्टिव है और आपने ऑब्जेक्टिव के अलावा एक्यूमुलेशन किया हुआ है और इस एक्यूमुलेशन को आपने कहीं और खर्च कर दिया नॉट एज पर द योर फॉर्म नंबर 10, तो उस अमाउंट पर भी टैक्स लग जाएगा। आपने सेक्शन 11(5) के हिसाब से नहीं लगा हुआ तो ये सारी सिचुएशंस ये इन्होंने दे दी है जिस पर 30% का टैक्स लग जाएगा। एक्सीड पेमेंट 13(1)C में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यदि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया हुआ है जो आर्म लेंथ प्राइस में नहीं है, आर्म लेंथ प्राइस में नहीं है। आर्म लेंथ प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर। ये ऑडिटर की अपनी कॉल है कि आर्म लेंथ प्राइस एज पर द सिचुएशन क्या बैठता है। यदि आपको लगता है इन्होंने एक्सेस पे किया हुआ है तो कितना एक्सेस पे है, वो जितना एक्सेस पे है उस पर भी 30% का टैक्स लग जाएगा। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया, आपने आउटसाइड इंडिया के बाहर खर्च किया हुआ है विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द CBDT, और अनोनिमस डोनेशन, ये सारी सिचुएशन पर सेक्शन 115 BVI में 30% का टैक्स लग जाएगा। अदर इनकम, इसके बाद में डिटेल ऑफ कैपिटल एसेट, यदि ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल एसेट मैंने बेची और खरीदी है तो उसकी भी पूरी एक शेड्यूल्स है। इस शेड्यूल के आस पर फुल्ली चैरिटेबल यस और नो, नेट कंसिडरेशन आपने कितने की बेची, कितनी की आपने डीम्ड एप्लीकेशन में खरीदी, पार्टी चैरिटेबल, इन सबके कैलकुलेशन अलग अलग होते हैं, इसके हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट आता है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट एक्सीड 50 लाख। इसमें दोनों सिचुएशन आ गई। यदि आपने सिंगल पर्सन के साथ पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया है, ट्रांजेक्शन चाहे वो पेमेंट का हो चाहे वो इनकम का, सिंगल पर्सन से 50 लाख से ज्यादा का आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, चाहे वो इनकम का पार्ट हो चाहे वो पेमेंट का पार्ट हो, आपको उनकी डिटेल देनी है। मीन्स असेसी का नाम क्या है जिसके साथ में आपने ट्रांजेक्शन किया है, उसका पेन नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मोड ऑफ एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक नॉन इलेक्ट्रॉनिक, वेदर TDS हैज बीन डिडक्टेड यस और नो, और कितना अमाउंट TDS काटा है।
ये डिटेल आपको देनी है। अब एक सेक्शन है 1310। 1310 क्या है? ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एज ए एग्जाम्पल हम उसको समझेंगे। सपोज एक एनपीओ है जिसके पास में 12AA का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल हुई। ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म नंबर 10 या 10B विद इन टाइम नहीं फाइल हुआ। एज पर लॉ के हिसाब से यदि आपका फॉर्म नंबर 10B या 10BB विद इन टाइम मीन्स बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, मीन 30 सितंबर तक आपने यदि किसी एसएससी का, एनपीओ का ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल की है, तो लॉ के हिसाब से जितना एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो पूरा आपको डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसी काफी सिचुएशन आती थी जहां एसएससी को बड़ी प्रॉब्लम फील होती थी। अगर किसी एसएससी की सपोज 10 करोड़ की इनकम है, 9 करोड़ रुपए का खर्चा है, और जो एक्सपेंसेस 9 करोड़ का है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, यदि फॉर्म नंबर 10B ऑडिट रिपोर्ट आपने विद इन टाइम नहीं फाइल किया, तो 9 करोड़ रुपए का पूरा एप्लीकेशन ऑफ फंड आपका डिसअलाउ हो जाता है। और जब इंटीमेशन आती है 143(3)(1) की, तो आपके पास में क्या होता है, पूरे 10 लाख पर 10 करोड़ पर पूरे पर 30% का टैक्स लग जाता है। तो बड़ी हार्डशिप प्रॉब्लम होती थी। तो उन टाइप के एसएससी के लिए ये फॉर्म सेक्शन 1310 इन्होंने लाए हैं। यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो लॉ ये कहता है हम आपको खर्चे तो अलाउ कर देंगे, और अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है जहां आपने फॉर्म 10B टाइम से नहीं फाइल किया हुआ है या आपने कंडोन नहीं लिया, तो हम आपका जो आपके खर्चे हैं हम उसको अलाउ कर देंगे। देखिए क्या क्या चीज करते हैं। इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर, कितनी आपकी इनकम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर इनकम इन इंडिया, यहाँ गया। एक्सपेंडिचर टू बी डिसअलाउड, ये नीचे के जो खर्चे हैं ये हम डिसअलाउ कर देंगे। कौन कौन से खर्चे? एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉर्पस, यदि आपने कॉर्पस से कोई पैसा खर्च किया है वैसे भी डिसअलाउड है, कोई ऐसी बात नहीं। एक्सपेंडिचर फ्रॉम द लोन ऑन बोरोइंग, वैसे भी डिसअलाउड है। डेप्रीसिएशन, आपको डेप्रीसिएशन नहीं देंगे। डोनेशन टू एनी पर्सन, ये भी डिसअलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने टीडीएस का कोई वॉल्यूशन करा है, उस अमाउंट पर कैश में कोई पेमेंट करा है, ये सब करने के बाद में जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर से ये अमाउंट लेस हो जाएगा, जो बचेगा उस पर एओपी की रेट लग जाएगी। मीन्स 15% का टैक्स जो बेनिफिट मिलता है एक्यूमुलेशन का, वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब आता है एक्सपेंडिचर फॉर द रिलीजियस पर्पस, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो यदि रिलीजियस नेचर का है। इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, और इफ द एक्सपेंडिचर इज मोर देन 5%, इम्पैक्ट ऑफ ATG। लॉ के हिसाब से क्या है, आपका कोई रिलीजियस ट्रस्ट है या चैरिटेबल कम रिलीजियस है, ये रिलीजियस हम चैरिटेबल है, तो जनरली क्या होता है, जो प्योरली रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनको ATG का बेनिफिट नहीं मिलता है। और जो चैरिटेबल कम रिलीजियस हम चैरिटेबल हैं, और उन ट्रस्ट का जिनका 5% से कम का खर्चा रिलीजियस नेचर का है, तो उनको ATG का बेनिफिट मिल जाता है, मींस उनको ATG का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो ये उन्होंने डिटेल मांग ली आपसे कि भाई ऐसे कोई रिलीजियस चैरिटेबल नेचर के ट्रस्ट हैं जिनका 5% से ज्यादा यदि आपका उनका एक्सपेंसेस है रिलीजियस नेचर का, तो आप बताएं। ये भी डिटेल आपको देनी है। अब 13(3) के जो 13(3) का मतलब रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी मींस ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी हो गए, और सोसाइटी के केस में मेंबर्स और गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हो गए सारे। कंपनी के केस में डायरेक्टर्स और 5% से ज्यादा होल्डिंग, ये सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। 13(3) में इनकी डेफिनेशन भी दी है, या उनके रिलेटिव। तो अगर आपके हैं तो उनकी आपको डिटेल देनी, नेम, उनका पैन नंबर, उनका एड्रेस, उनका आधार नंबर, और स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। लॉ के हिसाब से यदि 50,000 से ज्यादा का किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वो भी इस स्पेसिफाइड पर्सन बन जाता है एज पर सेक्शन 13(3). ये आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है सारे। लैंड ऑफ द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, आपने सेल अलाउंसेस किया हुआ है, कोई आपने सर्विस का पेमेंट करा है, किसी तरह की आपने कोई सिक्योरिटी दी है, कोई शेयर आपने सेल परचेज किए हैं,
आपने कोई प्रॉपर्टी को डाइवर्ट किया है, एनी अदर फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये इस तरह के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं और इसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है एज पर द एक्ट। नेक्स्ट आ गया स्पेसिफाइड वायलेशन। अब लॉ में ये आ गया है, यदि आपने किसी भी तरह का कोई लॉ का वायलेशन किया हुआ है स्पेसिफाइड एज पर सेक्शन 12AB4, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ये आपको रिपोर्टिंग करनी है कि किसी एनपीओ ने ड्यूरिंग द ईयर कोई सेक्शन 12AB4 का किसी भी तरह का कोई वॉल्यूशन तो नहीं किया। अब देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं। इनकम अप्लाइड अदर देन ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव के अलावा जो आपने फॉर्म नंबर 10A में डाले हैं या एज पर बाई लॉज हैं, उसके अलावा कोई आपने और ऐसा कोई खर्चा किया है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में नहीं है, तो आपने स्पेसिफाइड वायलेशन कहलाएगा। आपने एज पर आपका 11(4) और 11(4)A के हिसाब से इंसिडेंटल बिजनेस या बिजनेस अंडरटेकिंग है और आपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए हैं, तो ये भी आपका स्पेसिफाइड वायलेशन कहलाएगा। इनकम अप्लाइड फॉर द प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, आपने ट्रस्ट बनाया है और आपने किसी प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट में किसी भी तरह का कोई इस नेचर का कोई खर्चा कर दिया है, तो वो भी आपका स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाए। बेनिफिट टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड कास्ट, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी कास्ट के लिए बेनिफिट के लिए आपने कोई ट्रस्ट बनाया और उस पर कोई खर्चा किया है। नो जेन्यून एक्टिविटी, आपकी जेन्यून एक्टिविटी नहीं है, केवल पेपर पर चल रही है, किसी भी तरह की कोई चैरिटेबल आपने नहीं किया, या कोई अदर लॉ जो एज पर एग्जिस्टिंग लॉ है, किसी भी तरह के लॉ है, आपने उसका अभी कोई पालन नहीं किया, कंपाइल नहीं किया, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो स्पेसिफाइड वायलेशन की कैटेगरी में आती है। अगर ऐसा ऑडिटर कोई देखता है तो डेफिनेटली वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे। ऑडिट रिपोर्ट में लिखते ही आपका इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, सो कॉज नोटिस, क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट। तो प्लीज लुक आफ्टर ऑन दिस इश्यू, क्योंकि ये जैसे आप लिखेंगे रजिस्ट्रेशन का, आपके पास सो कॉज आ जाएगा, सो कॉज आते ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल यदि होता है तो 115 DD लग जाएगा। दैट इज ए वेरी हार्ड प्रोविजन। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है ऑडिट करते समय कि हमें कौन कौन सी चीज का किसी भी तरह का कोई ऐसा स्पेसिफाइड वायलेशन तो नहीं किया असेसी में। अब इसमें इन्होंने 269 SS, 269T, 269ST, ये सब जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पॉइंट होते थे, TDS का, ये सब सारे के सारे इन्होंने फॉर्म 10B में ला दिए। सेम डिटो, सेम लैंग्वेज, सेम फॉर्मेट। अब ये जो इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की है, मैंने ये शेड्यूल लिखे हुए हैं, आगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। शेड्यूल का मतलब है अगर मैं फॉर्म नंबर 10B देखता हूँ तो उसमें कॉर्पस का शेड्यूल दिया हुआ। कॉर्पस का मतलब है डिटेल ऑफ कॉर्पस। वहां शेड्यूल FC दिया हुआ है तो FC का मतलब है डिटेल ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। शेड्यूल LB का मतलब है डिटेल ऑफ लोन एंड बोरोइंग। INT एप्लीकेशन मींस इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया। ये सब शेड्यूल्स हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म याद रखे हैं। DI का मतलब है डिटेल ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन। DA का मतलब है डिटेल ऑफ एक्यूमुलेशन। AC का मतलब है डिटेल ऑफ एक्यूमुलेशन, फॉर्म नंबर 10। ACA का मतलब है डिटेल ऑफ एक्यूमुलेशन टैक्स अर्लियर ईयर। SPA का मतलब है स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड पर्सन A, स्पेसिफाइड पर्सन B, लैंड ऑन बिल्डिंग, C, D। इस तरह के सारे शेड्यूल दे रखे हैं। इन शेड्यूल की अदर लॉ वायलेशन, TDS का डिसअलाउंस, 40A3 कैश पेमेंट, 40A3A कैश पेमेंट, 269SS, 269SS की डिटेल, ST, T, TDS, TDS, ये सारे शेड्यूल्स हैं और उनके सारे नाम दिए। अब हम शेड्यूल्स आते हैं शेड्यूल वाइज। डिटेल ऑफ कॉर्पस में क्या भरना है। ओपनिंग बैलेंस अनयूटिलाइज्ड, जो भी कॉर्पस अनयूटिलाइज्ड है उसका ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है। जैसे लास्ट ईयर भी था, सेम है और कोई चेंज नहीं है। लास्ट ईयर कंफ्यूजन में था कि हमें अनयूटिलाइज्ड का डालना है या एक्यूमुलेटेड टोटल फिगर डालनी है।
तो लास्ट में इन्होंने फिर बता दिया कि अनयूटिलाइज्ड है, तो उसकी डिटेल पूरी डाल ली, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर, कोई रिवर्ट बैक करा है, फाइनल अर्लियर ईयर का क्लोजिंग हो गया। अब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा 11/5 के हिसाब से होना चाहिए। 11/5 का मतलब है वो पैसा कहीं ना कहीं हमारा बैंक में होना चाहिए या एफडीआर में। अगर आपका बैंक और एफडीआर में नहीं है, अदर देन है 11/5 के हिसाब से, तो आपके ऊपर 30% का टैक्स लग जाएगा। अब ये आपको हमें सारा देखना है, पूरा वेरीफाई करना है। कंट्रीब्यूशन शेड्यूल कि कितना आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया हुआ, कितना आपका कॉर्पस है, कितना आपका नॉन कॉर्पस है, टोटल अमाउंट। बोरोइंग का ये लास्ट ईयर का है सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आउटसाइड इंडिया आपने यदि बाहर पैसा खर्च किया तो उसकी डिटेल्स है पूरा। एप्लीकेशंस है शेड्यूल्स में, फॉर्म नंबर 9A आपने जैसा हम देखते हैं 9A भरते हैं तो उसकी पूरी डिटेल डाली हुई। अब इन्होंने पूरा अनेक्सर डाल दिया कि आपने कब कब फॉर्म नंबर 9A फाइल की हैं, कौन कौन से साल में फाइल किए हैं, उसमें कौन कौन सी अभी 9A का अमाउंट कंटिन्यू चल रहा है, कौन कौन सा नहीं चल रहा। अगर वो अमाउंट खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, उस साल में आपने उस पैसे को खर्च नहीं किया तो उस पर 30% का टैक्स लग गया। तो पूरी इन्होंने लिंकिंग कर दी है, एक एक लिंक फॉर्म नंबर 9A के हिसाब से। उसमें पूरी डिटेल डालनी है आपको जब तक आपका फॉर्म नंबर 9A कंटिन्यू चल रहा है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल। और आपने कर दिया तो किस साल में आपका खर्चा हुआ है, तो खर्चा होने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है उस पर आपने टैक्स दिया या नहीं। एक्यूमुलेशन फॉर्म नंबर 10 सेम इशू, ईयर और एक्यूमुलेशन, डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म नंबर 10, amount accumulation year, purpose of accumulation, amount applied, purpose up to the beginning of the year, balance, amount tax earlier year। ये सारी डिटेल आपको करंट में तो करंट की भरनी है, और पिछले की यदि कंटिन्यू चल रही है तो उसकी भी आपको पूरी डिटेल भरनी है। एक्यूमुलेटेड इनकम अगर 5 साल में खर्च नहीं हुआ तो किस साल में, जो 5वें साल के एंड होते ही आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ 30%, तो उसकी भी डिटेल आपको डालनी है। ये सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैं सारे, इसकी डिटेल आपको डालनी है, सारे शेड्यूल वाइज हैं। आपने कोई जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कोई ऐसी कई इन्वेस्ट तो नहीं कर रखा जो कंसर्न आपकी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, उनकी डिटेल आपको देनी है। शेड्यूल्स हैं, आपने किसी लॉ का वॉयलेशन किया हुआ तो उसकी क्या स्थिति है, कि आपने केस की क्या स्टैंडिंग है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, क्या उसकी डिग्री पास हो गई नहीं हुई, उसका ऑर्डर पास हुआ नहीं हुआ, किस एपिलेट पर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ। तो इस तरह की जो इश्यूज हैं जहाँ उसको आपको डिटेल देनी है। डिटेल ऑफ पेमेंट टीडीएस पर, जिस अमाउंट पर आपने टीडीएस नहीं काटा है उसकी पूरी आपको डिटेल देनी है, और जितने अमाउंट पर आपका टीडीएस नहीं कटा वो अमाउंट आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाता। डिटेल आपका आ गया। 43 आपका कैश का पेमेंट। तो ये सब शेड्यूल्स है जिसको आपको भरना है। इसकी एनी सम लोन और डिपॉजिट, एनी स्पेसिफाइड सम टेकिंग एक्सीडिंग द लिमिट, ये सब 269 SS वाली इशू आ गया सारा। ये सारी चीज वही हैं जो हम टैक्स ऑडिट में भरते हैं। मीन्स टैक्स ऑडिट की पूरी डिटेल यहाँ इन्होंने अब ला दी है। ये टीडीएस की डिटेल हो गई, टीडीएस के हम भरते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, सेम फॉर्मेट है, नथिंग न्यू। अब ये अब आती है कि ये जो फॉर्म नंबर 10B में जो शेड्यूल्स हैं, ये लगभग सारे के सारे शेड्यूल हमारे ITR 7 में भी है, सारे के सारे। हालांकि ITR 7 में ज्यादा शेड्यूल्स हैं, 10B में कम शेड्यूल्स हैं, लेकिन है सर लगभग, मतलब जो 10B में है वो सारे सारे शेड्यूल ITR 7 में है, लेकिन इनकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। IT एक्यूमुलेशन का ITR 7 में शेड्यूल नंबर I है या 10B में शेड्यूल नंबर AC है।
एक्यूमुलेशन इनकम टैक्स शेड्यूल AI है या शेड्यूल नंबर ACA है। डीम्ड एप्लीकेशन शेड्यूल नंबर D है या शेड्यूल नंबर DI है। डीम्ड एप्लीकेशन टैक्सेस शेड्यूल नंबर DA। कॉर्पस में शेड्यूल नंबर J का A1 या कॉर्पस का शेड्यूल है। लोन बोरोइंग में शेड्यूल का JA2 या शेड्यूल LB है। 115 BBI का या शेड्यूल है या पॉइंट नंबर 33-34 है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का शेड्यूल BC है और 10B में 21 से 26 है। तो ये मैंने इंटरप्ले करने की कोशिश की है कि कौन कौन से चीज आपके फॉर्म नंबर 10B में है, कौन सा फॉर्म नंबर ITR 7। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले मुझे 10B तैयार करना है या ITR 7 तैयार करना है। इस बात का ध्यान में रखेंगे, यदि कोई इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर ITR 7 में अलग है या 10B में अलग है, अगेन देयर इज ए मिसमैच एंड इंटीमेशन जब आप फाइल करेंगे तो आपके पास में 133(1)A की इंटीमेशन आ जाएगी कि आपने ये, जैसा अभी आती है सेम आ जाएगा, इशू नोटिस आ जाएगा। इसको इस बात का ध्यान में रखेंगे कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन ITR 7 में जा रही है, सेम इंफॉर्मेशन, सेम अमाउंट, सेम क्वांटिफाई अमाउंट फॉर्म नंबर 10B में हो। मिसमैच हो जाएगा तो हम भी देखते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के केस में, यदि कोई मिसमैच होता है तो वो इनकम लगा के इंटीमेशन हमें भेज देता है। अब हमें जब हम फाइल करेंगे तो मेरे हिसाब से दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। पहले बैलेंस शीट बना ली, बैलेंस शीट के बाद में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स डाल लिए, उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्म नंबर 10B बनाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर्म नंबर 10B की डेट है 30 सितंबर की और ITR की डेट है 31 अक्टूबर की, मीन्स 1 महीने बाद। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी गलती हो सकती है कि हमारे ITR 7 में इंफॉर्मेशन कुछ और है। इंफॉर्मेशन से मतलब है अमाउंट क्वांटिफाई जो शेड्यूल्स का है, और फॉर्म नंबर 10B में और है। तो इट इज बेटर कि दोनों को साथ साथ रख लें। जब साथ साथ रख ही रहा है तो ITR भी हम टाइम से पहले ही फाइल करें, क्योंकि शेड्यूल काफी है, एक शेड्यूल नहीं है, लगभग 26-27 शेड्यूल्स हैं जो हमें फाइल बनाने हैं और टाइम अपने पास में लिमिटेड होता है। NGO में आधी इंफॉर्मेशन होती है, आधी नहीं होती। तो ये सब चीजें बहुत ही अब ध्यान से हमें करना है, और यदि कहीं भी मिसमैच होता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क फिर ऑडिटर पे आता है कि आपने इंफॉर्मेशन गलत फाइल की। प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई मिसमैच हो गया, मिसमैच पर सीधे तो वो 30% का टैक्स लगाए, और ये 30% का अमाउंट बहुत होता है एक NPO जो चैरिटेबल नेचर का होता है। तो इन सब चीजों को काफी ध्यान से हमें भरना है। अब पहला जैसा नहीं है कि हमने एक आर्टिकल को दे दिया, उसने अपनी रिटर्न भर दी। अब रिटर्न भी भरना काफी कॉम्प्लिकेटेड है ITR 7। इतने सारे शेड्यूल्स हैं, इतनी सारी सब चीजों को इन्फॉर्मेशन लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, कुछ नहीं है, फिर उसमें आपको कॉल लेनी है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें रियली इस साल बड़ी क्रिटिकल रही। अब इजी नहीं है ITR 7 को भरना, और टू मच। चलिए, अब ये अभी तक हम बात कर रहे थे फॉर्म नंबर 10B की। अब फॉर्म नंबर 10BB की, जैसे मैंने कहा 5 करोड़ से कम के लिए फॉर्म नंबर 10BB में ये इंफॉर्मेशन है। 10B में तो बहुत सारी थी जो अभी हमने डिस्कस की, हाँ, लेकिन जो इंफॉर्मेशन 10B में है वो सारी सॉरी, जो इंफॉर्मेशन 10BB में है वो सारी 10B में है। मीन्स 10B में ज्यादा इंफॉर्मेशन है और 10BB में कम इंफॉर्मेशन। 10BB में कौन कौन सी है? बेसिक डिटेल है, लीगल है, मैनेजमेंट है, कमिटमेंट ऑफ एक्टिविटी है, बुक्स है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट है, 13(3) है, 13(2) है, स्पेसिफाइड वॉल्यूशन है, TDS 40 है, 40 है TDS। मीन्स 269S, 269ST, 269T, इनकी इंफॉर्मेशन जो है फॉर्म नंबर 10BB में नहीं है। ये भी काफी है फॉर्म 10BB में, इतनी इंफॉर्मेशन निकालना नॉट इजी। अब मेरा ऑडिट रिपोर्ट का हो गया। अब ऑडिट रिपोर्ट में कहीं किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेते हैं, फिर ITR 7 की तरफ मूव करते हैं। सर,
there are so many questions here. जी। मैं quickly पूछ रहा हूँ जो ये relevant है. How to arrange the name of relatives as required in 10B of all the trustee members. Relative includes a lot of person. How to arrange the names? देखिए, ज्यादातर यदि हम ट्रस्ट डीड अपने पास में होती है, बायलॉस अपने पास में होते हैं, या Yes. कंपनी या ऑफिस बियरर की लिस्ट ज्यादातर अपने पास में होती है. अगर चेंज हुई है तो चेंज, तो ये इंफॉर्मेशन आपको वैसे तो जो बायलॉस ट्रस्ट डीड वगैरह में मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हमें लेनी पड़ेगी एसएससी से, यदि अपने पास में. वैसे तो सबसे पहले तो यदि हम किसी एनपीओ की ऑडिट कर रहे हैं तो बायलॉस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पहला चीज है. दूसरी चीज, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 10AC आपके पास होना चाहिए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बायलॉस में है. कभी कभी क्या होता है कि बायलॉस में इंफॉर्मेशन ओल्ड होती है, वो चेंज हो गई. जैसे जनरली सोसाइटी के केस में क्या होता है, मैनेजमेंट कमेटी है, हर 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए एज पर बायलॉ इलेक्शंस होते हैं. और जो न्यू मैनेजमेंट कमेटी बनती है उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास जाती है, और रजिस्ट्रार एक कॉपी आपको देता है बायलॉस की, ये मैनेजमेंट कमेटी की चेंज वाली. तो ये इंफॉर्मेशन आपको एसएससी से लेनी होगी. और जो इंफॉर्मेशन उसमें है, उसमें देखो जो भी चेंजेस होंगे, बस केवल आपके पास में आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, पैन नंबर नहीं होगा उसका, या उसका आधार नहीं होगा, ये आपको लेने पड़ेंगे. दूसरा, जब सबका आपने फॉर्म नंबर 10A फाइल किया होगा तो तभी भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी. उसमें आधार भी गए थे, पेन भी गए थे, फोन नंबर भी गया था, मेल आईडी भी गई थी. तो लगभग सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी, आपको निकालनी पड़ेगी और उसी से ही आपको फाइल करना पड़ेगा. सर, इसके अलावा है क्वेश्चन. In 10B, is all salary paid to related party to be mentioned, or only if the excess unreasonable amount to be mentioned? हाँ, डेफिनेटली अनरीजनेबल वाला जो अमाउंट है. Unreasonable mention करना है. ठीक है. जैसे Sir, हम in टैक्स ऑडिट में 10B, देखो, दो तरह की सी होती है. टैक्स ऑडिट में हम जनरली रिलेटेड पार्टी के पूरे ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, यहाँ भी हमें पूरे ट्रांजेक्शन दिखाते हैं. यदि आपको लगता है अनरिजनेबल है तो वो अलग सेक्शन है, वहां पर आपको 30% का टैक्स लग जाता है 115 BBI में. आपको लिखने sir, ट्रांजेक्शन पूरे ही है जो right. आपने रिलेटेड पार्टी के साथ में किया हुआ है. आपको लगता है वो अमाउंट अनरिजनेबल है, उस अमाउंट को 115 BBI वाले चैप्टर में हम डाल देंगे अनरिजनेबल का. Okay. Sir, 10B और 10BB इनेबल हो गया है क्या? हाँ Income tax अभी, portal? हाँ अभी पोर्टल पर जो इन्होंने कर दिया है, अभी नहीं हुआ जी, अभी तो आइटर 7 भी नहीं आया. तो 7 भी नहीं आया तो अभी पोर्टल पर फॉर्म नंबर 10B और BB अभी नहीं आया है. Okay. Sir, एक क्वेरी थी. Single transaction, every single donation received to be reported in 10BD, or only donation for which ETG deduction is to be claimed allowed? देखिए, नहीं, अभी मैंने आपको रिकंसिलेशन बना के दिया था. ये हमें थोड़ा सा भ्रम है सभी को कि जिनको 80G का बेनिफिट लेना है उसी की आपको इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर 10BD में फाइल करनी है. ये नहीं है, ये फाइल करने हैं डोनी को. और आपको क्या पता कि सामने वाले 80G का डिडक्शन लेगा या नहीं लेगा. आपको सभी की रिटर्न, सभी का अमाउंट मीन सभी की डोनेशन डिटेल आपको फाइल करनी है. यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको ITR 7 में उसको रिकंसिलेशन बनाना है, और आपको रीजन भी देना है कि किस रीजन में आप कवर होते हैं. तो Right, ये sir. इशू नहीं है कि सामने वाले को 80G का बेनिफिट चाहिए तभी आप फॉर्म 10BD फाइल करेंगे. हाँ, ये जरूर है कि जब तक आप फॉर्म 10BD नहीं फाइल करेंगे तब तक सामने वाले को 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 80G के बेनिफिट के लिए फॉर्म नंबर 10BD फाइल जरूरी है. जब आप फॉर्म BD फाइल करेंगे तो आपको फॉर्म नंबर 10BE मीन्स डिजिटल रिसीप्ट आपको निकालनी है. वो निकाल के आपको डोनर को देनी है. उस पर एक ARN नंबर मेंशन होगा. जो डोनर है, जब अब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो 80G वाले कॉलम में वो ARN नंबर डालेगा जो 16 डिजिट का है. बिना ARN नंबर डाले डोनर को 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा. Yes, sir. Sir, we can proceed further.
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी ने कोई कमेंट्स नहीं करा साहब इतना चेंज हो गया, इतना बड़ा फॉर्म 10B हम कैसे फाइल करेंगे, कैसे नहीं फाइल करेंगे? नहीं सर, ये तो टू देखिए मच इसकी इश्यूज है भाई, किसी का कोई कमेंट्स नहीं है, या सब इंतजार कर रहे हैं एक बार को आने दो, भरते हैं तब पता लगेगी भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो ये रही है। भी हो सकता है, there are some query left, there is no changes of object but changes in trustee to whom the trust to inform and when. नहीं, यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज में चेंज नहीं किया है, मींस आपने केवल ट्रस्टी आए गए हैं, तो वो आपका मोडिफिकेशन नहीं कहलाता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक कॉलम दिया हुआ है, जब आप ट्रस्टी की इंफॉर्मेशन भरेंगे तो इसमें एक कॉलम है कि ड्यूरिंग द ईयर यदि आपके कोई ट्रस्टी चेंज हुए हैं, तो केवल उनकी ट्रस्टी चेंज हुए ट्रस्टी की इंफॉर्मेशन देनी है। राइट सर। आपको कोई मतलब उसको इनकम टैक्स भरा में कहीं नहीं आपको इंफॉर्मेशन देनी। सर मोरोवर अभी फॉर्म फाइल करना बाकी है, सो देयर आर सम कंफ्यूजन की क्या भरेंगे क्या नहीं हाँ, भरेंगे। अभी क्योंकि जब तक फॉर्म नहीं आएगा हम लोग नहीं देखेंगे कि क्या बहाल करेंगे, 2-4 रिटर्न फाइल करेंगे, वो गलत होगा, तब ये सब चीजें रिफ्रेश होनी है। लेकिन उसके लिए हमें माइंड प्रिपेयर करना है कि हाँ इतना सारा हमें काम करना है। राइट सर। हमें फॉर्म नंबर 10B और 10B में इन्फॉर्म, अल्टीमेटली क्या है, जब आप एसएससी के साथ बैठेंगे तो आपके माइंड में होगा ये इन्फॉर्मेशन हमें एसएससी से लेनी है, जिससे हम अपनी रिटर्न फाइल करते समय हमें टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। राइट सर। राजीव जी, सर ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया इसका कि रिलेटिव्स की लिस्ट एज पर ट्रस्ट डीड हमें देखनी है। Now we move to change in ITR 7. अभी ITR 7 के शेड्यूल्स हैं, जो मैंने शेड्यूल आपको लिखे हैं, शेड्यूल आई, शेड्यूल IA, शेड्यूल डी, DA, A2A। शेड्यूल आई का मतलब है एक्यूमुलेशन 11-2। शेड्यूल AI taxes at the rate of 30%, amount not spent in the 5th year। Schedule D, deemed application, form number 9। DA, amount not spent as per the time limit of form number 9A। JA1, detail of corpus। JA2, detail सर of ये loan borrowing। लाज नहीं हुआ, अभी तक ओपन नहीं हुई पीपीटी। जी, पीपीटी नहीं आ रही? नहीं नहीं। अब आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं आ रही, चलिए एक बार कैंसिल करके दोबारा हाँ, लगाइए। स्टॉप कर दोबारा। यस सर, नाउ ओके। आ रही है सर? ठीक है। अभी शेड्यूल आई, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में, ये सारे शेड्यूल्स हैं, ये पर्टिकुलर्स हैं, किस शेड्यूल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है। अब हम शेड्यूल वाइज चेंज डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फॉर्म नंबर 10B में, सेम है कि आपने कौन कौन से रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। अगर आपने 12AB का तो 12AB का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपने 80G का ले रखा है तो 80G का आ जाएगा। वैसे सारे नहीं होते, 1023C वाले केस में ये होते हैं, 12A वाले में केस है। 13B का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 35 का मतलब रिसर्च एसोसिएशन, 80G 2B जो रिलीजियस पार्टी के जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं जिनको अलग से बेनिफिट मिलता है, 80G 2B अदर देन 80G, ये सारे सेक्शन है। और जब हम देखेंगे तो फॉर्म नंबर 10AC में हमारे सारे सेक्शन वाइज हमें दिए होंगे कि सेक्शंस में हमने रजिस्ट्रेशन लिया, वहां लिखा होगा सारा। तो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल हम फॉर्म नंबर 10AC से हम देख सकते हैं कि हमने किस सेक्शंस में लिया है और रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। और इसके बाद में वो सारी इंफॉर्मेशन है कि आपको डेट कब से है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, किस क्या आपका रजिस्ट्रेशन URN नंबर है, किस अथॉरिटी ने दिया हुआ है और कौन सी डेट से आपका है।
11.2 का सेम इशू है, जो मैंने फॉर्म नंबर 10 फाइल किया हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्स है। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो शेड्यूल फॉर्म नंबर 10B में है वो सेम शेड्यूल ही ITR 7 में है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ITR 7 और फॉर्म 10B आपको साथ साथ बनाना पड़ेगा। पहले मेरी एडवाइस है कि पहले आप ITR 7 को भर लें। ITR 7 को भरने के बाद अपलोड ना करें, अपलोड तो नहीं हो सकता बिना उसके बाद जो आपका प्रिंट निकल रहा है उसके हिसाब से फिर आप अपने ऑडिट रिपोर्ट को देखें, या पहले ऑडिट रिपोर्ट भरेंगे तो उसको देखते हुए फिर ITR 7 भरेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोरल सेम है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट चाहता है कि जो आप ऑडिट बोर्ड में कर रहे हैं वो हमें सर्टिफाई करके दें, क्योंकि ITR को सर्टिफाई करता है SSC, ऑडिट रिपोर्ट को सर्टिफाई करता है ऑडिटर। तो उनकी इंटेंशन ये है कि जो आपने ऑडिट रिपोर्ट में सर्टिफाई किया हुआ है, चाहे वो ITR 7 में कैसे भी है, क्या चीज़ है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको पिक करके डिपार्टमेंट को देनी है। किसी भी तरह की जहाँ आपकी इनकम है, लॉ का किसी ने कोई वायलेशन किया है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये सब आपको सर्टिफाई कर रहे हैं। और सर्टिफाई तब हम करते हैं जब आप अपने पास में सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी इसमें है, तो आपके लिए सोर्सेज डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिससे आप इंफॉर्मेशन, जिससे आप अमाउंट को क्वांटिफाई कर सकते। अब जैसे 11.2 की डिटेल है, ये मैं तभी भर सकता हूं जब मेरे पास में लास्ट ईयर की भी डिटेल्स होगी। फॉर्म नंबर 10 आपने कब कब फाइल किया हुआ है, लास्ट 5 ईयर का कम से। तो ज्यादातर हम लोग प्राइवेट सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, और प्राइवेट सॉफ्टवेयर में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होती है। फिर भी एक बार को हम फॉर्म नंबर 10 इस केस में हम देख लें, जैसे ईयर और एक्यूमुलेशन, अमाउंट एक्यूमुलेशन ईयर ऑफ द इन द ईयर ऑफ द एक्यूमुलेशन, पर्पस, charitable, balance, amount taxation earlier year, balance available, in amount applied other than objective, amount credited or paid to 12AB, balance available, amount spent 11.5, ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हमें पूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हो गई तो गलती का मतलब 30% का टैक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। क्योंकि ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है, ज्यादातर इन्होंने लिंक कर दिया है आपस में शेड्यूल को। 11.3, अब जैसे मैंने कहा 18, 19, 20 जैसे 5 साल के लिए है, तो 5वें साल में जैसे ही आपने खर्च नहीं किया, यहाँ भी आ गया कि कौन कौन से साल का था, कौन कौन से साल का आपका एक्यूमुलेशन है, कितना टैक्स हुआ। जैसे ही 5वें साल में आएगा वो अपने आप ऑटोमेटिक लिंक कर देगा 115 VBI से कि आपका इतना अमाउंट अनस्पेंड बच रहा है, कितना टैक्स आपने दिया हुआ है लास्ट। कहीं ना कहीं ये पूरा पिछले 5 साल का इन्होंने मान लिया कि 11.3 में आपने कितना टैक्स दिया, किस साल में आपका पैसा खर्च नहीं हुआ, पिछले 500 सालों का, उसमें डिटेल ले ली। डीम्ड एप्लीकेशन वही फॉर्म नंबर 9A की बात है, वो सेम पैटर्न है। ये भी फॉर्म नंबर 9A की पूरी डिटेल मांग ली 11.1 में। तो इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन के लिए 5 साल की रिटर्न अल्टीमेटली चाहिए होगी कि 5 साल, पिछले 5 साल में 11.2 या 11.1 क्लॉज 2 का किसी भी तरह का कोई टैक्स तो नहीं लगा है, तो आपको यहाँ भरना है। क्योंकि एक इनकम पर यदि एक बार टैक्स लग गया तो उस पर दोबारा नहीं लगेगा, और आपने अगर टैक्स नहीं भरा तो फिर वो दोबारा टैक्स लगा देगा। तो इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब डिटेल ऑफ कॉर्पस, अनयूटिलाइज्ड, रिसीव, अप्लाइड, ये सब इंफॉर्मेशन लोन की सेमी है जो 10B में थी। अब एक इन्होंने ये दिया हुआ इसमें, ये मैं बात करूं ITR 7 की, कि आपका जो कॉर्पस फंड बैलेंस शीट में आ रहा है और जो आपका कॉर्पस फंड शेड्यूल J का A1 में आ रहा है, उसका आपको पूरे को रिकंसाइल करना है। क्लोजिंग बैलेंस एज पर द
एज पर शेड्यूल जे कॉर्पस। अब अगर सपोज मेरी एक्यूमुलेशन फिगर कॉर्पस की यहाँ आ रही है तो वो मेरी असेट साइड से भी मैच करेगी। परचेज आपका कितने का है, डेप्रिसिएशन कितने का है, अदर्स कितने का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉर्पस एज पर द बैलेंस शीट, आपको रिकंसिलेशन बनाना है। क्योंकि पहले वाले जो शेड्यूल में था जे का A1 में, उसने अनयूटिलाइज की अमाउंट मांगा है, तो जो यूटिलाइज हो गया है वो यहाँ मांगा। जो आपने कॉर्पस यूटिलाइज कर लिया, फिक्स एसेट खरीद ली, क्या कर लिया उसका यहाँ पर उन्होंने डिटेल। तो ये रिकंसिलेशन पूरा बना के आपको देना है, और ये अपने लिए बड़ा टफ होगा। प्रॉब्लम क्या है, सपोज मैंने 10 साल 15 साल पहले कोई कॉर्पस लिया, उस कॉर्पस की मैंने फिक्स एसेट खरीद ली, और उस फिक्स एसेट पे मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया WDV, लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो फिगर आ रही है वो WDV आ रही है, और जो मेरा कॉर्पस आ रहा है वो इनिशियल अमाउंट आ रहा है। वैसे तो उस अमाउंट पे मैंने कितने का खरीदा, कितने का डेप्रिसिएशन लगा, तो ये मेरे पास डिटेल यहाँ दे रहा है। अब डेप्रिसिएशन की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी फिगर मेरे पास है नहीं, पिछले 10 साल का मैं रिकॉर्ड कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, तो ये इस बार ये वाले शेड्यूल भरने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब आपको नहीं मिलती है तो अदर्स में डाल के आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तक मैच नहीं करेगा आपकी जीसॉन फाइल नहीं बनेगी। बेसिकली यार गवर्नमेंट चाह रही है एक बार को वो डाटा पूरा इकट्ठा हो जाए, तो अगर नहीं होती है तो अदर्स में डाल के आप कर सकते हैं, तो कहीं किसी तरह का कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन रिकंसाइल टैलीड होना चाहिए पूरा पूरा केस। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, पूरी डिटेल्स है। whether the register 29 रिप्रेजेंटेशन एक्ट, if yes registration number, date of registration number, इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज डेट है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, ऑडिट हुई है, किस डेट में आपने ऑडिट रिपोर्ट फर्निश की है, ऑडिटर कौन है, मेंबरशिप नंबर, नेम ऑफ ऑडिटर, प्रोप्राइटरशिप, पैन नंबर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। whether the report of 13 फाइनेंशियल हैज बीन सबमिटेड। इसमें क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है बिफोर द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, ये उसकी डिटेल है। वेदर एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर एनी पर्सन एक्सेस द 20,000, अगर 20,000 से ज्यादा का आपने अगर वो लिया हुआ है डोनेशन, तो उसकी डिटेल अलग से देनी पड़ती है। If yes, record of the each voluntary contribution other than contribution by electoral bond in excess of 20,000, इसकी डिटेल जाती है, आपने मेंटेन है नहीं है। Any donation 2,000 रुपीज वाज रिसीव इन अदरवाइज, अगर 2,000 से ज्यादा कैश में आपने डोनेशन लिया हो तो उसकी डिटेल। विच फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, डेट ऑफ फर्निशिंग, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पॉलिटिकल पार्टी के केस में देनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, पेन नंबर, कंट्रीब्यूशन, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए है। अब आ गया शेड्यूल्स का शेड्यूल BC इन्होंने अब चेंज कर दिया है। शेड्यूल BC का मतलब है कि आपको डोनेशन की डिटेल देनी है, और डोनेशन कितने तरह के होते हैं, लगभग 4 तरह के। पहला वॉलंटरी डोनेशन, दूसरा कॉर्पस डोनेशन, तीसरा CSR, चौथा ग्रांट्स। अब ये चारों की चारी आपको डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, चारों के चारों आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, डोमेस्टिक और फॉरेन कंट्रीब्यूशन। डोमेस्टिक में आपका कॉर्पस हो गया, आपकी गवर्नमेंट ग्रांट हो गई, आपका CSR हो गया, और अदर डोनेशन, कॉर्पस और नॉन कॉर्पस, अदर देन कॉर्पस। ऐसी FCRA में कॉर्पस, नॉन कॉर्पस और फिर अन्य नियमस। तो पूरा आपका शेड्यूल BC आपका मैच करता है, और इस शेड्यूल BC की आपको फिर रिकंसिलेशन बनानी है फॉर्म नंबर 10BD से, जो आपकी ऑडिट है। अब आपका आ गया शेड्यूल AI, रिसीव फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ आपको कंसोलिडेटेड फिगर देनी है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम। ये लास्ट ईयर भी था, सेम उसी पैटर्न पर है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। पहले क्या था, 2 शेड्यूल थे, शेड्यूल EC और शेड्यूल ER। अब उन्होंने दोनों शेड्यूल को कंबाइन कर दिया है।
शेड्यूल ईसी की फिगर आपकी इस वाले कॉलम में आ गई रेवेन्यू में, और शेड्यूल ईआर की आपकी कैपिटल वाले कॉलम, दोनों का टोटल करके ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गया एज पर योर ऑब्जेक्ट। आपने करंट ईयर में कोई असेट खरीदी है जो 11(1)(a) में आती है, वो यहाँ पे, और वो शेड्यूल आप पीछे देखा आपने 10B में वहां दिया, वो वहां से लिंक कर दिया। ये इंफॉर्मेशन है आपकी सारी, आपने आप जो कॉर्पस फंड लिया हुआ, डोनेशन टू द अदर, अप्रूव द इनकम टैक्स टू द कॉर्पस 11(2), ये सब भी डिटेल आपको देनी है। पार्ट सी, आपको जो आपने जो खर्चा किया हुआ है उसका फंड फ्लो में से दो पैसा कहाँ से आया, ये पहले भी था, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है, वो सेम चीजें हैं, काफी सेम है, काफी चेंज है, ये सारे सेम शेड्यूल्स हैं जो पिछली बार भी थे, क्योंकि तो अब इन्होंने सेक्शन वाइज एक स्पेस दिया हुआ ITR 7 में। यदि आपका एनपीओ इस वाले सेक्शन में कवर करता है 1021 डीएस सारे में, तो आपको केवल यही वाले शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल एआई में नहीं डालना, केवल यही आपको टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर और केवल आपको यही ही डालनी है और कहीं नहीं डालनी। ये अपना इनकम एक्सपेंडिचर I2 इस हिसाब से डालना है आपको, I3, I4। यदि मेरा सपोज कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और मेरे पास में ना तो 12AA है ना 1023C 6 और 6A है, तो लॉ ये कहता है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं है और आपके मेडिकल और प्योरली मेडिकल प्योरली एजुकेशन में है, तो आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड छूट ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उनकी रिटर्न I4 में कॉलम में फाइल होगी, उसमें बस आपको क्या डालना है, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन है मेडिकल, एड्रेस कहाँ पर हो रहा है, टोटल रिसीप्ट आपकी कितनी है, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है, अमाउंट अप्लाइड कितना करा है, और बैलेंस एक्यूमुलेशन कितना है। इसमें किसी भी तरह की ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है, ना मैंडेटरी है ना होती है, ना तो फॉर्म नंबर 10B फाइल होगा, ना फॉर्म नंबर 10B भी फाइल। ये शेड्यूल्स हैं आपके, ये जब आपका 115 TD लग जाएगा तो अपना आप ही ले लेगा। एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, जैसे मैंने कहा असेट जितनी भी आपकी आ रही है असेट साइड में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लगेगी। आपकी जो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी या अनसिक्योर्ड लोन, वो उसमें से लेस हो जाएंगे। आपकी नेट वैल्यू आ गई। FMB डायरेक्टली एक्वायर्ड आउट ऑफ द इनकम हो गया 1112। फेयर मार्केट वैल्यू लाइबिलिटीज एवर 4 एक्रेडिटेड इनकम आपकी हो गई। इस पर 115 TD में टैक्स लग गया 30%। इस पर कोई इंटरेस्ट पे होती है स्पेसिफाइड डेट, क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर किसी तरह का वॉल्यूशन किया हुआ है तो उसकी टाइम लिमिट 30 डेज की है। 30 डेज के बाद 115 TD लागू हो जाएगा और उस दिन से पर आपको इंटरेस्ट वगैरह की सारे प्रोविजंस हो जाएंगे। 115 BBI सारे शेड्यूल ऑलरेडी 10B में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आउटसाइड इंडिया यदि आपकी कोई इनकम है तो TT ट्रेडिंग के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से टैक्स रिलीफ मिलता है, तो ये वो डिटेल है। ये ITR 7 का मैंने पूरा जो चेंजेस थे करंट ईयर में, वो मैंने ऑलरेडी सारे आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो मैं भी पहले कुछ क्वेश्चन ले लूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ क्रिटिकल इशू जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमें फेस होते हैं, वी विल डिस्कस। सर, एक आनंद जी का क्वेश्चन है, 11(2) इंक्लूड्स 15% और 9A और 10। क्या कहाँ पर है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहे हैं? चेक बॉक्स में है 11(2) इंक्लूड्स 15% और ओनली 9A and 10।
There is a no द्वारा पूछ लेते हैं, उससे करता हूँ रिक्वेस्ट के द्वारा पूछ। सर आगे बढ़ते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ द्वारा पूछ ले एक बार। इफ नो डोनेशन रिसीव वेदर ऑडिट मस्ट। वेट सर। हाँ, टोटल 17 मैसेज है इसमें, तो मैं ऊपर से देख लूं पहले ही स्टार्टिंग। ऊपर से तो ज्यादा ऊपर तो नहीं जाइएगा आप, यहाँ से 6:17 से स्टार्ट कर सकते हैं। 6:17 ठीक है। 5:29, 5:35, 6:08, 6:11, 17। हाँ, 11(2) इंक्लूड 50% और ओनली 9A और 10A। देखिए 11(2) होता है फॉर्म नंबर 10 के लिए। 10 का मतलब है, अगर मेरा सपोज एग्जाम्पल मेरी 100 रुपीज की इनकम है और मेरा जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है सपोज है 80 रुपीज, तो 80 प्लस 15 का तो मुझे एग्जम्पशन मिलेगा, ये हो गया 95। तो रिमेनिंग मेरा कितना हुआ 5 रुपीज। इस 5 रुपीज के लिए मेरा 11(2) में जाएगा, जिसका मैं फॉर्म नंबर 10 फाइल करूंगा। और उस 5 रुपीज को आने वाले 5 साल में मैं कभी भी खर्च कर सकता हूं। अगर 5वें साल में वो पैसा खर्च नहीं हुआ तो 115 BBI के हिसाब से उस पर 30% का टैक्स लग जाएगा अप टू द एंड ऑफ द 5th ईयर। नेक्स्ट है इफ नो डोनेशन रिसीव्ड वेदर ऑडिट मस्ट। देखिए डोनेशन का ऑडिट से कोई इशू नहीं है। अब इसमें एक जो सेक्शन है 12A(1)(b), जिसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट ये कहती है, यदि आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम मींस टोटल रिसीप्ट आपका 2,50,000 से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना जरूरी है, चाहे वो 250 में किसी भी तरह की कोई इनकम, इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मिस्टर अरुण मौर्य जी ने कि मैं TDS का क्लेम कैसे लेंगे। जैसे एक जनरल रिटर्न फाइल होती है आपकी TDS की, जब आप लिंकिंग करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि इस इनकम को आपने कहाँ दिखाया है, नो डाउट शेड्यूल AI में दिखाएंगे। उसके साथ लिंकिंग करेंगे तो जो TDS का अमाउंट होगा वो आपकी TDS में चला जाएगा, और जब जीशॉन फाइल बनेगी वो सही बनने के बाद में वो अमाउंट आपका, अगर आपका टैक्स बनना है तो टैक्स एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको रिफंड हो जाएगा। मीन जो TDS आपका 26 AS में आ रहा है वो आपको क्लेम करना ही पड़ेगा। सर जवाहर काला जी का क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन डोनेशन टू पर्संस अदर देन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन टू बी डिसअलाउड, व्हाट डज इट मीन? जवाहर काला जी का कुड डोनेशन टू पर्सन अदर देन, देखिए अदर देन ट्रस्ट का मतलब है, यदि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को कोई डोनेशन देता हूँ, इंडिविजुअल पर्सन को, जैसे अगेन एग्जांपल मेरा एक ट्रस्ट है, मैं उन ट्रस्ट में सपोज कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक वीक है, मैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ, और जब मैं पढ़ाई का उनकी एजुकेशन का खर्चा उठा रहा हूँ तो मेरे पास में दो वे के ट्रांजेक्शन, या तो मैं पैसा उनको दे दूं या मैं डायरेक्ट पैसा उनको ना देके जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में मैं उसकी फीस जमा कर। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर यदि मैंने फीस जमा कर दी तो वो डोनेशन की कैटेगरी में नहीं है, और मैंने यदि डायरेक्ट बच्चे को पैसा दिया हुआ है तो वो डोनेशन की कैटेगरी में है। तो अब आपको कोई भी खर्चा करना है तो डायरेक्ट चैरिटेबल नेचर करेंगे, जहां आपको बच्चा पढ़ रहा है वहीं आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, तब तो आपको अलाउड है। और आपने बच्चे को दे दिया कि भैया तू खर्च कर ले, जैसा चाहे वैसा खर्च कर ले, वो डोनेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, और इस तरह के डोनेशन जो है वो अब आपको इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होंगे। सर इसके बाद TDS वाला तो आई थिंक आपने रिप्लाई कर दिया, TDS हाउ टू क्लेम रिफंड ऑफ TDS डिडक्टेड बाय डोनर ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। नाउ Shreya Bansal, our team member, want to ask. Shreya, over to you. Thank you so much, sir. Hello, good evening, sir. सर मेरी एक क्वेरी है, लाइक अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो ऑलरेडी ही एजुकेशनल रिलेटेड चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा था, एंड उन्होंने अब एक हॉस्पिटल भी इंक्लूड कर लिया चैरिटेबल,
तो जी। अभी तक जो उनकी रिटर्न फाइल कर रहे थे, हम सेक्शन 1023C3AD के अंडर क्लेम कर रहे थे जी। उनकी। तो अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए, बिकॉज उनके पास एजुकेशनल भी है और हमारे पास हॉस्पिटल का भी है। तो अब उसमें 11-12 के लिए सर एक दिक्कत हमारे पास ये आती है, उनके पास 12A रजिस्ट्रेशन है, ATG रजिस्ट्रेशन है, पर उसमें ये दिक्कत आती है कि वो 85% अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एंड वो जी। इन्वेस्ट लाइक मैनेजमेंट आपस में डिसाइड करते हैं, तो 80 मतलब इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं जो भी हमारे स्पेसिफाइड मोड्स हैं। तो अभी तक की जो रिटर्न थी हम सेक्शन 10 के अंडर क्लेम करते आए थे, तो उसके लिए सजेशन चाहिए थी सर आपकी। जी जी, आपका मैं मानता हूँ कि जो आपका इनकम है वो 5 करोड़ से कम है, चाहे वो राइट सर, मेडिकल की है और उसकी है। राइट। सर आपके पास में 12AA का रजिस्ट्रेशन है, जो आपने 12AB में रजिस्ट्रेशन करा लिया, नया रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, 10AC फॉर्म आपके पास आ गया है, और राइट वो राइट 10AC आया है वो 5 साल के लिए आया है। राइट। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैं 15% जो आपका है या जो आपका खर्चा नहीं हुआ तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, वो अल्टीमेट पैसा आपका कहाँ रखा है? बैंक अकाउंट में तो रखा है ना। हाँ जी। तो बैंक अकाउंट भी अपने आप में 11/5 की कैटेगरी में। ओके सर, सेम बैंक अकाउंट 11/5 की यस, कैटेगरी में आ आपका जाएगा। सेविंग ओके बैंक में है, आपका करंट अकाउंट में, आपकी एफडीआर है, वो FD, सारा का सारा 11/5 की कैटेगरी में आता है। तो कहीं कोई ठीक आपको है। इशू नहीं है। 11/5 ओके का ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर उस अमाउंट की एफडीआर बनानी है, नो। आपका सेविंग बैंक में, करंट अकाउंट में एग्जिस्टिंग एफडीआर है, इट इज ठीक है ऑल्सो सर, ऑल कवर अंडर सेक्शन 11/5। फाइन सर। तो सर इसमें सेक्शन 11 में ही हम जा सकते हैं, सेक्शन सेक्शन 3AD और 11 में 3। जाने का फायदा है, देखो मैं बताऊं क्या होता है। जो जो सेक्शन जो है, सेक्शन 1023 थर्ड एडी और थर्ड ए। राइट अब मैं सर। पहले थर्ड एडी में आता हूँ। हाँ जी। उसमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है कि थर्ड एडी का मतलब है आपके दो पर्पस होने चाहिए। पहला प्योरली एजुकेशन, दूसरा राइट, आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। आपके वाले केस में क्या हुआ, प्रॉफिट मोटिव का मतलब है आपका सरप्लस 15% से ज्यादा है, तभी 11/5 की आ रही है। जैसे ही 15% से ज्यादा हुआ, आपका उस सेक्शन में वो क्लेम नहीं देंगे। हम्म। तो आपका मिड अल्टीमेट क्या हुआ कि ना तो आपको 15% मिलेगा, और रिमेनिंग जो आपने आपकी जो इनकम सरप्लस हुई है उस पर पूरे पर यूपी की रेट लग जाएगी। तो ओके सर, आपके लिए तो एडवाइजेबल है कि आप 12AA में जाएं, ठीक है सर, 15% का बेनिफिट लें। अगर ठीक है 15% से पैसा नहीं हुआ तो आप फॉर्म 10 फाइल कर दें, आने वाले टाइम में कभी भी खर्च कर दें। और जो हाँ जी, आपका पैसा लाइबिलिटी असेट साइड में, करंट में या सेविंग में, वो 11/5 हाँ जी, की कैटेगरी में आता है। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर एक आनंद जी की क्वेरी है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एफडीआर, हाउ टू शो एंड हाउ टू क्लेम टीडीएस व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड। जी, अब मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास में 1 करोड़ की एफडीआर है फॉर द 6 ईयर, 6 साल के लिए। अब 6 साल के लिए 1 करोड़ की एफडीआर है, 8% के हिसाब से है, तो 8 लाख रुपए मेरे पास में एफडीआर इंटरेस्ट आ गया। उस 8 लाख रुपए पर 10% का उन्होंने टीडीएस काट लिया, 80,000 रुपए। क्योंकि टीडीएस काटा है, टीडीएस मुझे क्लेम करना है, तो लॉ के हिसाब से टीडीएस यदि आप क्लेम करते हैं तो उस साल की इनकम में आप दिखाएंगे। अब मैंने 8 लाख रुपए अपनी इनकम में दिखा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, फॉर्म नंबर 9A मुझे यहाँ फाइल करना पड़ेगा। 9A कहता है कि जो इनकम आपको रिसीव नहीं हुई, क्योंकि एफडीआर की इनकम तो रिसीव नहीं हुई मुझे, ये तो एक्रूवल है। जब मेरी एफडीआर मैच्योर होगी तब मेरे पास में पैसे आएंगे। तो इस केस में आपको फॉर्म नंबर 9A फाइल कर सकते हैं, और फॉर्म नंबर 9A फाइल करेंगे अप टू द 5 साल तक। 6वें साल में जब पैसा आ जाएगा तो पूरा का पूरा जो अमाउंट आपने एक्रूड इंटरेस्ट डाली हुई है, तो 6 ईयर में पूरी पूरी उस अमाउंट पे आपका इनकम का पार्ट हो जाएगा। फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे। तो देयर इज नो एनी क्रिटिकल इशू, ओनली यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 9। Sir, if there is any critical issue, we can discuss. आप अलाउ कर दें तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, दैट इज बेटर। Yes, sir. Allowed, sir. सर कुछ आप कह रहे थे ना कि कुछ क्रिटिकल इशू रह गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हाँ, वो कवर कर लेते हैं। देर आफ्टर अपने पास 20 मिनट का टोटल समय है। अभी किसी की कोई क्वेरी नहीं है किसी भी तरह की? नहीं सर, नहीं सर, अभी conclude। अब ऐसी एक दो सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस हुई है। अब हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 10A जो मुझे फाइल करना था 31 मार्च तक या 25 नवंबर तक। तो कुछ ऐसे केस मेरे सामने आए थे, जैसे कि हम जानते हैं मुझे 2 फॉर्म फाइल करने हैं 10A, 12AA का अलग, 80G का अलग।
लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन में कुछ एसएससी को हुआ कि उन्होंने केवल एक ही फॉर्म फाइल किया, केवल एक ही फॉर्म फाइल किया, 12AA का 80G का भूल गए। तो अब ये विंडो खुल गई है, हम 30/9/2023 तक फॉर्म नंबर 10A फाइल कर सकते हैं विद असेसमेंट ईयर 22-23, उसमें 22-23 का ऑप्शन भी आ गया। तो इस सिचुएशन में हम चूज करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23, फॉर्म नंबर 10A फाइल करेंगे और उसमें 80G के लिए जो हम फाइल करेंगे उसमें हम क्लॉज डाल देंगे 11, सेक्शन कोड 11। तो इस सिचुएशन में हम फाइल कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम फेस हुई थी कि जब हमने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए फाइल किए थे तो कुछ असेसी ने सेक्शन कोड गलत डाल दिए। हमें डालना था 1 सेक्शन कोड डालना था हमें, जो ऑलरेडी अब अपने पास में 12AA का रजिस्ट्रेशन है फॉर द क्लेमिंग 12AA, और 80G के लिए डालना था 11 कोड। लेकिन बाई मिस्टेक कुछ हमसे कुछ ने सेक्शन 2 और 12 डाल दिए, 2 और 12 डाल दिए। 2 और 12 का मतलब है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो 3 साल के लिए मिला है, हमें मिलना था 5 साल के लिए, लेकिन हमने ड्यू टू द अप्लाइड रॉन्ग सेक्शन कोड हमें 3 साल के लिए मिला। उनके लिए भी विंडो खुली हुई है। उनके लिए क्या विंडो खुली हुई है, पहले वो रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद में फिर वो नया फॉर्म नंबर 10A फाइल कर सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 22-23। तीसरी सिचुएशन फॉर्म नंबर 10BD में आ रही है। सपोज मैं फॉर्म नंबर 10BD फाइल किया, कुछ इंफॉर्मेशन मेरी उसमें रॉन्ग फाइल हो गई। सपोज मिस्टर ए का नाम लिखना था, मिस्टर बी का लिख गया, पैन नंबर किसी का था, किसी और का लिख गया, अमाउंट सपोज मुझे 25,000 मिला है, मैंने 2.5 लाख लिख दिया। तो इस तरह की जो क्लरिकल मिस्टेक हो गई है एग्जिस्टिंग डाटा में, मैं फॉर्म नंबर 10BD उसका रिवाइज फाइल कर सकता हूं बिना किसी पेनल्टी के। या दूसरा कि सपोज मेरे पास में 50 डोनर की लिस्ट है, मुझे मेरे पास में 2 डोनर ले गए, लेकिन वो एग्जिस्टिंग डाटा में मैं रिवाइज रिटर्न जब मैं फाइल करूंगा उसमें 2 लोगों का शामिल नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे सेपरेट फॉर्म नंबर 10BD फाइल करना पड़ेगा, ओनली जो पर्सन मेरे रह गए हैं। मुझे ऐसा नहीं है 50 का अलग डालूंगा 2 का अलग, ओनली जो रह गए हैं, रिमेनिंग ओनली 2% जो डोनर रह गए हैं, उसके लिए मैं सेपरेट फॉर्म नंबर 10BD फाइल करूंगा विद सब्जेक्ट टू द पेनल्टी ऑफ ₹200 पर डे। तो ये कुछ क्रिटिकल इशू थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हुए। काफी कुछ लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। या कुछ के साथ में क्या हुआ कि उन्होंने सेक्शन कोड गलत फाइल कर दिए, उन्होंने फॉर्म नंबर 10AB भी फाइल कर दिया। अब जब 10AB फाइल कर दिया तो हम उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। उस केस में फिर आपको दोबारा से अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो दोबारा से फॉलोअप करना पड़ेगा, और फॉलोअप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक चीज बात और मैं शेयर करना चाहूंगा कि जिन प्रोफेशनल ने या एसएससी ने अपने फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दिए हैं, पहले क्या था, तो फॉर्म नंबर 10A जब हमने फाइल किया तो बाय डिफॉल्ट सीपीसी से रजिस्ट्रेशन आ रहे थे, लेकिन फॉर्म नंबर 10AB में ऐसा नहीं है। आपको जाएं, जो आपकी जुरिडिक्शन ऑफिसर हैं उससे जाके मिलें, उसको पूरे डॉक्यूमेंट दें और उससे पूरी बातचीत करके ही सारे उसको सेटिस्फाई करके ही आपको फॉर्म नंबर 10AB का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अदरवाइज आप चाहे कि मेरिट के बेस पे आ जाए, ये नहीं हो रहा है। और एक बार को यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो 115 TD लग जाएगा, और 115 TD भी लगेगा, साथ साथ आपकी इसकी अपील फाइल होती है ITAT में। और ITAT में इस समय बैकलॉग इतना है, कम से कम आपकी सुनवाई के लिए कम से कम 3 साल लग जाएंगे, और उन तीनों साल में हर बार आपको प्रोटेस्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इट इज ए वेरी क्रिटिकल। तो थोड़ी सी इस केस में यदि फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दिया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कंसर्न ऑफिसर से जाके मिल लें, और उसको जो पेपर मांगे, जो रिक्वायर्ड पेपर है, उसको 2 तरह से सबमिट करें, ऑनलाइन भी सबमिट करें। यदि वो फिजिकल डिमांड करता है तो फिजिकल भी देके, क्योंकि कुछ केसों में हमने देखा है वो कहते हैं एक कॉपी फिजिकल भी आप हमें दे दो। उससे बेमतलब का आर्गुमेंट ना करें कि हमने ऑनलाइन दे दिया, आप देने में कोई बुराई नहीं है, आप दे दें, चाहे वो बाद में आपको वापस दे देंगे, लेकिन देखें उसको सेटिस्फाई करके। और वो जब तक आप मिलेंगे नहीं,
मेरिट के बेस पे 2-4% ही केस होते हैं, बाकी 95% केस में आपको हियरिंग करनी ही पड़ेगी। तो इट इज ऑल रिक्वेस्ट यू कि जिनके पास में टाइम है अभी फॉर्म 10 फाइल कर दिया है तो उसको प्लीज फॉलो अप कर लें। बिना फॉलो अप किए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। कुछ क्वेरी ले लेते हैं बाय मीटिंग। बीपी सिंघल जी प्लीज आस्क। हाँ सर, मैं कैलाश बोल रहा हूँ, सीए। जी मेरा कैलाश। क्वेश्चन है सर, जो 10A भी हमने फाइल कर दिया है और उसका हमें जी। वो एसी में रजिस्ट्रेशन आ चुका है, जी तो उसमें तो नहीं मिल रहा ना हमको उसको? ना उसमें नहीं, जब रजिस्ट्रेशन मिल गया फिर तो कोई इशू है ही नहीं। हाँ, ओके सर। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर ग्रॉस रिसीट 2.5 लाख से कम है तो ऑडिट की जरूरत तो नहीं है ना? देखिए मैं आपको दो चीज बता दूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अभी आपको। थ्योरेटिकल तो जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल तो 12A1 भी कहता है यदि 2.5 लाख से ऊपर है तभी आपकी ऑडिट होगी, और ऑडिट जी, होगी सर। तभी आपको फॉर्म फाइल करना है। जी लेकिन प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आती है, जो प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल क्या रहता है कि जब मैं ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता हूँ तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन फंड का मतलब है जो मैंने इनकम, जो मैंने खर्चा किया हुआ है उसका जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो मुझे मिलेगा ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने। ओके। सीपीसी को तो ये नहीं जानता। सीपीसी क्या करता है, उनके प्रोसेस क्या करते हैं कि जैसी सीपीसी में हमने रिटर्न फाइल की, सीपीसी उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करते में वो अपनी आईटीआर के हिसाब से देखता है कि आपकी इनकम कितनी है, वो इनकम ले ली। फिर वो उठाता है, एप्लीकेशन फंड उठाता है आपकी ऑडिट रिपोर्ट से। जी सर। आपकी ऑडिट रिपोर्ट यदि फाइल होगी उसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड जितना है वो उतना उसको डाल लेगा। उसके बाद में रिमेनिंग कैलकुलेट करेगा। अब जी स्थिति क्या होती है, मैंने फॉर्म, सपोज एक एग्जांपल, मेरी 2,40,000 रुपए की टोटल रिसीट पे है, मैंने आई 7 भरा, उस 2,40,000 में 2,20,000 रुपए के मेरे एक्सपेंसेस हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। जी लॉ के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है। जब जी मैंडेटरी नहीं है तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल की, तो अल्टीमेट सीपीसी क्या करेगा, 2,40,000 की इनकम दिखाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड 0 दिखाएगा, और 2,40,000 पर 30% के हिसाब से टैक्स बना के भेज देगा। ओके। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दें, चाहे एज पर एक्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ड्यू टू दिस इश्यूज अब अल्टीमेटली क्या होगा, वो 30% का टैक्स लग जाएगा। असेसी हमारा बहुत छोटा है, अब 30% का मतलब 72,000 रुपए का टैक्स होगा, फिर इंटरेस्ट हो गई, बिल्कुल तो ठीक है सर। अल्टीमेटली 70-80,000 रुपए का टैक्स आ जाएगा। असेसी हमारी जान खा जाएगा, यार मेरी वैसे भी इनकम नहीं है, और उसमें 80-90,000 रुपए का फिर आपकी टैक्स ही लाएगी। सर दूसरी बात ये समझना चाह रहा हूँ, अगर 2% टीडीएस डिडक्ट हुआ है जी तो इस रिसीट को मैं डोनेशन में लूं, कैसे करूं? नहीं, क्योंकि देखो उसमें डोनेशन पे कभी टैक्स नहीं करता। टैक्स आपका करता है दो सिचुएशन पे, यदि आपने या तो सीएसआर लिया है जी या आपने कोई इनकम ली है, किसी भी तरह की कोई बिजनेस इनकम, जी तो सीएसआर पे तो काफी लोग काट रहे हैं, टीडीएस जी काट रहे हैं, क्योंकि जी सीएसआर वालों की भी ऑडिट हम करते हैं, तो हम भी खुद कहते हैं यार आपने सीएसआर दिया हुआ, पेमेंट करा, तो ये टीडीएस काटो। जी तब टीडीएस कट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीएसआर की आपने शेड्यूल बी से में ले लिया, आपने चैरिटेबल नेचर हो गए। जब टीडीएस की आपने जब कॉलम भरेंगे तो उसमें आता है कि टीडीएस की इनकम किस आपने दिखाई है, तो जी शेड्यूल बी में दिखाएं और उस टीडीएस को आप क्लेम कर लें, जी। कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब उसकी इनकम जो रिसीट हुई है उसको मैं डोनेशन में ले जाऊं? नहीं, डोनेशन तो नहीं है। आपने जो आपका टीडीएस जो कट रहा है वो कहाँ पर, किस इनकम में कट रहा है, पहले ये बताएं। सर मेरे को स्पॉन्सरशिप दी उन्होंने, ठीक है, स्पॉन्सरशिप का स्पॉन्सर, मान लिया 10 लाख रुपए दिया, ठीक 10 है, लाख तो को 2% टीडीएस काट लिया अपने, उन्होंने समझ एक्सपेंस क्लेम कर गया। लिया। तो आपने जो 10 लाख रुपए दिए वो आपने स्पॉन्सरशिप को दिखा दिया शेड्यूल एआई में। जी शेड्यूल एआई इनकम का पार्ट है। जी शेड्यूल तो शेड्यूल एआई में आपने स्पॉन्सरशिप दिखा दी। जी स्पॉन्सरशिप दिखा दी, उसके बाद में आपने खर्चे क्लेम कर लिए, खर्चे आपके हो गए, आपने सारी चीज करने के बाद में जब आप टीडीएस की मैचिंग करेंगे तो उसमें लिख देंगे शेड्यूल एआई में मैंने इनकम दिखाई हुई है। अच्छा शेड्यूल एआई में जैसी आप दिखाएंगे वो आपकी टीडीएस आपका हो जाएगा, और आप रिटर्न फाइल करेंगे तो टीडीएस का अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है सर। Navneet ji, you want to ask? Navneet sir, any other person want to ask? Sir, can I? Yes, yes.
सर वो प्रीवियस क्वेरी कोई एक बारी मुझे एक और जनरल नॉलेज के लिए क्लैरिटी चाहिए थी, क्या हम वैसे सेक्शन 1023C 3AD और 3AE इकट्ठे क्लेम कर सकते हैं कि कर आईटीआर सकते में? हैं, लॉ के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन टोटल आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों। और सर जैसे मैंने चेक करा तो वहां पर हम जब क्लेम करते हैं वहां पे रो आती है कि हमने किस सेक्शन के अंडर हम ये क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही सेक्शन ऑप्ट करने की मुझे परमिशन दे रहा है। अच्छा, दो तो की मैं नहीं वहां दे पे रहा? नहीं सर, अभी जो मैंने प्राइमा फेसी चेक करा है तो उसमें एक ही ऑप्शन दे रहा है, तो मुझे इसीलिए नहीं, डाउट उसमें था। ड्रॉप डाउन करके देंगे, ड्रॉप डाउन करके देंगे, फिर ड्रॉप दे डाउन देंगे। करके सर ड्रॉप डाउन करके उसमें लिस्ट दी उन्होंने, तो मैंने एक हाँ। सिलेक्ट किया, 3AD पहले सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद सेकंड सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं अनेबल हुआ मेरे पास। ओके ओके। हाँ जी, मतलब इस चीज के लिए। हाँ, वो आपका क्योंकि क्या रहता है, अभी जैसे एक केस लो आया था सुप्रीम कोर्ट का, नोबल एजुकेशन सोसाइटी का, तो ठीक है वो सर। भी मैं शेयर कर देता हूँ। उसमें क्या था कि वो प्योरली एजुकेशन की थी। तो ठीक है अब सर। ये भी आ गया है कि अगर आपकी प्योरली एजुकेशन है तो वो बाई लॉ में भी केवल आपके लॉ जो ऑब्जेक्टिव हैं वो केवल एजुकेशन ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकते। तो हो ठीक है सकता है सर। इस वजह से इन्होंने एक ही कोई करा, क्योंकि उसमें ये भी ओके, है वैसे जनरल, अगर हम वो भी गॉट देखते इट। हैं तो जनरल ये भी है कि आपका पर्पस एजुकेशन है तो एजुकेशन ही होना चाहिए। राइट। जैसे ही आप स्विच ओवर करते हैं तो आप फिर एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं, तो हो ठीक सकता है। है इस वजह से वो सही भी है म- वैसे देखा जाए तो। हाँ जी, मतलब एक ही कर सकते हैं, जी मतलब एक ही जी क्लेम कर पाएंगे। ठीक है जी। सर, थैंक यू सो मच। रवि जी प्लीज आस्क। सर गुड इवनिंग। जी आपने सर। अभी कुछ बताया था कि यदि हमें ये स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन के लिए उनके स्कूल में या उनके कॉलेज में सीधा वो फीस दे दी है तो जी उसको कहाँ दिखाना होगा? आपने कुछ सर, बता रहे थे, वो मैं सर वो समझ तो नहीं पा रहा। एजुकेशन, वो तो आपने खर्चे में डाल दिए, चैरिटेबल नेचर का हो गया तो रिलीफ ऑफ पुअर में डाल दिया आपने, आपका तो ऑब्जेक्टिव हाँ रिलीफ ऑफ पुअर है ना, तो हाँ उसमें जी फिर हाँ, डाल देंगे आपकी रिलीफ ऑफ पुअर में। ठीक है सर, ठीक। जी सर एक चीज और है इसमें। जैसे हम ये हमारी कुछ डोनेशंस आती हैं जो कि ये कैश में आती हैं और जो कि नाम नहीं होते, जो जी 5% तक तो रिलीज में अलाउड है, तो जी। हम वैसे ही नाम डाल देते हैं, उसमें चल जाएगा वो? नहीं सर, उसमें आप देखो, ये कॉल आपको लेनी है सर। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें दो रिक्वायरमेंट है नो योर जी केवाईसी में। पहला कि जी डोनर का आपके पास में नेम और एड्रेस होना चाहिए। जी दूसरा है कि उसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन उन्होंने 8 तरह के माने हैं, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, ओके वोटर आई कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इस तरह की ओके लिस्ट दी है उन्होंने। ओके तो जब तक ये आपके पास में ये तीनों चीज नहीं है, नेम एड्रेस और पैन, या ओके ये आइडेंटिफिकेशन, तब तक वो सही माना जाता नहीं है, तो वो आपका अनोनिमस माना जाता। क्योंकि क्या होता है, जब जी हम कहेंगे साहब ये मेरा वॉलेंट्री डोनेशन है, जी डिपार्टमेंट कहेगा ये आपका अनोनिमस है, तो हम क्या ओके करते हैं, वर्डन टू शिफ्ट करते हैं। हम असेसिंग ऑफिसर से कहते हैं भाई इनको 133(6) का नोटिस देगा, आप कंफर्म कर लो। और 133(6) के नोटिस के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है, बेयर मिनिमम: नेम, जी। एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन, मींस पैन या आधार। सो यदि हम एनोनिमस भी डोनेशन दिखा दें तो कुछ दिक्कत आती है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, बस आपको लिमिट देखना है 5% और 1 लाख विचएवर इज हायर। अगर उसमें कवर हो रहा है फिर कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। नहीं, 5% तो ज्यादा होता है सर हमारा। ज्यादा होता तो वो 30% का टैक्स लग जाएगा उस पर, एक्सेस पे। अगर वो हम चाहे हम रेवेन्यू डोनेशन नहीं दिखा सकते उसको? सर रेवेन्यू डोनेशन वही मतलब वॉलेंट्री डोनेशन के लिए तभी वॉलेंट्री होता है जब आपके पास में आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का मतलब है नेम, एड्रेस और। अभी क्या प्रॉब्लम हमारी, जो क्राउड फंडिंग होती है ना, उसमें बड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। बैंक में पैसा धनाधन आ रहा है और पता नहीं किससे कैसे आया। तो अब क्राउड फंडिंग वालों ने क्या किया हुआ है, एक पहले फॉर्म भरवाते हैं पहले वो, और अच्छा, उस फॉर्म पे ये तीनों, कौन सी फंडिंग सर? जो क्राउड क्राउड फंडिंग होती है फंडिंग। ना, जो नेट के थ्रू होती है, आपने हाँ नंबर हाँ दे दिया, लोग बाग ने आपने अपना बैंक अकाउंट दे दिया कि आप भैया जी मैं इस चीज का काम कर रहा हूँ, आप इसमें जमा करा दो, लोग बाग जमा कर जी देते हैं। जी तो जी उसको आप देखते हुए अब क्राउड फंडिंग के लिए उन्होंने वेबसाइट पे ही एक फॉर्म डाल दिया कि भैया कम से कम जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें डाल दें और उसके बाद ओके कर। तो कम, क्योंकि क्या होता है कि जब आप केस लिटिगेशन में जाता है तो जी डिपार्टमेंट उसको अनोनिमस करने की कोशिश करेगा, हम जी उसको वॉलंटरी करने की कोशिश करेंगे। ओके तो डिपार्टमेंट तो उसमें वीक पॉइंट देखेगा, वो जी कहेगा जी नहीं जी भाई आपके पास में कोई आइडेंटिटी मैं कैसे मान लूंगा, आपने एक पॉकेट से लेकर दूसरे पॉकेट में अपना भी पैसे जमा करा दिए, मैं कैसे मान लूँ। ओके
हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तभी हो सकता है जब हम नेम, एड्रेस और पेन कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दें, फिर बर्डन टू जी। शिफ्ट डिपार्टमेंट पे हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट 133 का नोटिस नहीं देता तो उसकी वो है कमी। ठीक है, हमने तो ठीक है। अपना बर्डन शिफ्ट करके उसके फाइले में बॉल डाल दी, भैया ये मेरे डोनर है, उसकी ये लिस्ट है, हाँ, हाँ, अब यू आर सेटिस्फाइड तो आप मान लें, नहीं है तो 133 का नोटिस। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच। Thank you, Ravi. Sir, there is no other query. एक बार चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। क्या कर रहा है सर? आओ सर, आओ बस। निकल गए क्या? सर कैसा सर? अच्छा, निकल गए क्या? सॉरी सर। चलिए मैं आ गया। प्रिंट आउट के हिसाब से चाहिए मेल Sir, ATG provisional registration cancel after 2 months. What about donation received within that 2 months? देखिए साहब, यदि रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ है तो डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी यदि आपने फॉर्म 10BD फाइल कर दिया है। जिस समय डोनेशन दिया था उस समय आपके पास में रजिस्ट्रेशन है और आपने 10BD फाइल कर दिया है तो डोनर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। Sir, there is no other query. We can conclude today's session. So, yes, sir, there is no other query. So, let us conclude today's session. हेलो And wonderful discussion by participants. Once again, thank you very much, sir, for giving your precious time to deliver session, and it is recorded so everyone can see later on. Reporting, yes. अभी बैठे हैं अभी 10-15 Sir, any reporting on TIS? for नहीं, अभी the- TIS में अभी इन्होंने डाटा को अपडेट नहीं किया, अभी कोई इन्फॉर्मेशन TIS में नहीं आ रही डोनेशन। सर ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या प्लीज? Yes, sir, with the recording and presentation I will share. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। Thank you.